Hello, hello, hello. Am I audible? हाँ जी। हाँ जी, जी, हाँ जी, हाँ जी. Perfect. So let me just share my screen. Mm, Screen show हो रही है ना मेरी? जी, हाँ। हाँ जी, nice है. So good evening, everyone. Today we will be learning about Git and GitHub, and I'll also brief you guys about the Microsoft Learn to Learn Ambassadors program. Not only this, but we will also be talking about containerization and Docker. है ना? So this will be a very interesting and informative session. So just stay tuned till the end. Right. So before moving further, allow me to first introduce myself. Myself Dharve Behel, and I am a second year student at BPIT and currently undertaking my bachelor's in information technology. I have completed my Google Summer of Code last year with Synfig, in which I was working on GTK development. And apart from that, I'm also a Microsoft Learn Student Ambassador. I'm also a part of tech team and senior counsel at HashDefine. And basically, my experience revolves around building a full stack applications, and I'm also having sweet corner for scripting and automation as well. Right. So that's all about me. Yeah. So before moving on further, I would like to first brief you guys about few more things. The first one is this meeting will be recorded, so you can watch this session later again if you want afterwards. And secondly, you can ask for doubts in the chat section of the teams, right? So feel free to ask your doubts during the session. I would love to answer those. Okay. Bhaiya, how can we access to recording? I'll tell the details of how can you access the recording afterwards, if that's not an issue. After the session, I guess. If that's not an issue, right? Right? Who was this? Yes, Bhaiya. Nice, nice. Okay, perfect. So yeah, um, these are the topics that I will try to cover in today's session. So let's just get started. Let's just get started with the session, right? So the first question is, what is Git? Right, we all must have heard about Git, that Git is a tool that developers use. Git is something, or Git is something else, right? So first, let's just try to understand Git, or what Git is. Firstly, um, do you guys know what Git is? If anyone of you know, feel free to write your answers in the comments in the chat section. Chat section is only for team members. Then you can unmute yourself if you want to. If you really know the answer, there's not an issue with that. Let's just try to keep this session interactive, है ना? So that's my main motive. So anyone of you know what Git is, or what is the use of Git, how we can use it in our day-to-day life as a developer? Yeah, I can. Am I audible? Yes, yes. What's your name? What's your good name? I'm Bhavya Kumari. I'm also IT second year student of PPIT. Okay, okay. Glad to meet you. Glad to meet you. Yes, go ahead. Yeah, so Git is basically a kind of a software where we track of our courses, sorry, not courses like folders and all, and it is also used for developers as we do. So there we can manage our folders, like even the repos of someone is other working on projects. Even you can say this is a good platform for a project manager. He can see whatever the someone's had done in the projects and all. So that is a all work of Git. Right, right. Yes, that's right. That's absolutely correct. Basically, yes, Git is a tool, as Bhavya said. Git is a tool which is used by developers in day-to-day life, and I'll now just try to explain it with the help of a story, right? So, just try to assume that there are two developers, right? There's a developer A and there's a developer B. Okay, and both of them are working on a single code base. That code base is having multiple files. Let's say file 1, file 2. Let's say there is a file. Let's assume there is a file called index.js. Okay, and both of them have to work on that particular file.
This file is basically written on Node.js, for example. And for those who don't know what Node.js is, it is basically a JavaScript runtime environment which runs on V8 engine basically, right? So both A of the backend developers, scripting language. yeah, go ahead, sorry. A backend scripting language. Yes, we can say that also. So basically both of the developers have to work on the same project simultaneously. So how is that going to happen? What solution can be proposed to them in order to make everything right? Both of them have to work on this file, right? So how can we just make this happen? There are many problems which developers are going to face before they can actually collaborate on a particular project, right? So the first problem is that we have to host our code somewhere, like it's index.js, or there are multiple files over here. We have to host all of these files in some remote cloud platform. Let's suppose we are using Google Drive, for example, right? So we have to push all our files over some other platform, for example, right? So let's suppose I just pushed all my files over some remote cloud platform and all my code base is over here. Right, so developer A can simply access this code base and developer B can also access this code base. But it's just a Google Drive, so all the folders are listed over there, and yes, it's as simple as that. But the question is it enough? Basically, is it will they now be able to collaborate easily on this using just Google Drive? No. No, why so? Why is that? Why? What are the problems that they are still going to face with Google Drive currently? Like right now, Live if we communication हो पाएगी. Permission issue. Okay, Permission so issues. Then if someone changes, uh-huh. if someone makes any changes that are not required, we can't go Mhm. back to, I guess, the same one, the previous one. Okay, that's a good point. That's a very good point. There are no Ajay? different Mhm. versions of that same file. So if someone makes Yes, changes, yes, that's also right. That's also correct. so Basically, the yes, original file gets lost. okay, I totally got your point. But let's just suppose there are just two people in the organization currently, right? Just A and B, no one else. Can they somehow manage to do their work using Google Drive? They can have some, they can just interact with phone calls or Discord server or just WhatsApp calls simply. है ना? I think they will be able to somehow collaborate. yes, they can. Yes, but Yes, they can. It's easier. It's Yes. yes, absolutely right. But how about the case when there are approximately thousands and thousands of developers, right? In that case, we are going to need some set of rules, some set of instructions, something more than just a Google Drive, I suppose, right? है ना? Yes. 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 So basically, um, that is why Git came into action. Git is basically a version control system. It is a VCS that is used by developers in day-to-day life and their daily life and their daily use basically. So basically the problem that both of the developers were facing over here is, let's say index.js में A ने कुछ changes कर दिए, और B के पास अभी भी index.js की पुरानी कॉपी है ना? Those changes which are done by A over here are not reflected in the B's local copy of that index.js or whatever it is. So yes, they can interact over a phone call, but a phone call will not be enough in the case of thousands of developers. So we just need, in fact, something more than just phone calls, right? So that is why we use Git basically. Right. So if you have ever heard about open source or how exactly organizations collaborate on a particular project, basically they use tools like Git, and there are many other tools, but Git is the most important example of those, right? So yeah. Right. So basically we still need two more things or features, I can say, before we can collaborate. Not exactly two. The first one is the VCS, which I listed earlier. And the second one is something called a remote source code manager, I suppose. Source code manager. Right. We'll talk about the second one later in this session. But first let's just talk about VCS.
So what VCS does, VCS basically is a tool which provides the functionality of maintaining the whole history of code base. For example, developer A has the whole copy of the code base और उसके पास हिस्ट्री भी होगी, कि हाँ इससे पहले कोई बी डेवलपर था, उसने ये कोड किया हुआ था, उससे पहले कोई सी भी था, लेट्स सपोज, उसने ये कोड किया हुआ भैया व्हाट्स VCS? VCS इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम. बेसिकली यार हम अपने एप्लीकेशन के ना हमारे मल्टीपल वर्जन्स बन जाते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई लेट्स सपोज डोमिनोज है ना, तो डोमिनोज ने अपना कोई एप्लीकेशन में कोई नया अपडेट डाला तो इट्स कॉल्ड 1.1, उसके बाद जो आएगा 1.11, फिर जो आएगा 1.12 लेट्स सपोज, है ना. तो ये वर्जन्स है. इन वर्जन्स को मेंटेन करने के लिए हमको लेट्स से हमको एक टूल चाहिए, उस टूल का नाम होगा एक VCS जो कि मल्टीपल वर्जन को मेंटेन कर रहा होगा. अंडरस्टूड? हेलो, अंडरस्टूड? या सो बेसिकली Yes. अगर मतलब ए डेवलपर ने कोई चेंज किया और उससे इस वर्जन से हम इस वर्जन पे ट्रांसफॉर्म हो गए, और अगर यहाँ पे वो सारा कोड ब्रेक हो जाता है, कोड फट जाता है अगर, तो वी कैन जस्ट सिंपली रोल बैक टू आवर प्रीवियस कोड विदाउट एनी इशू, and this can be done easily with the help of VCS, right? So that is the purpose of VCS, or the version control system. And Git is just an example of VCS. There are other version control systems as well. For example, Subversion, Mercurial, if you have ever heard about them. Mercurial is basically not that much famous as Git, but it is being used by Mozilla currently. So Mozilla doesn't support Git that much, but yes, it provides a brilliant support with Mercurial for the time being. Right. So yeah. So earlier I just told you about history, that developer A will be maintaining a history. In fact, the developer A's code base copy, the copy of the code base that developer A will be having. So that code base will be having some sort of history that about the earlier changes that has been made in that code base. है ना? Hello. Yes भैया. हाँ जी भैया. Perfect. So basically यार हमको हिस्ट्री शो हो रही होगी. मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल जहाँ पे हम हिस्ट्री लाइव देख सकते हो. If you have ever heard about React, है ना, GitHub पे. Yes, so GitHub मैंने खोला अभी. GitHub basically क्या है मैं बताता हूँ बाद में. I'll talk about GitHub later in this session, but let's just first assume that GitHub is something. I told you na कि we need two things. First one is VCS and second one is source code manager. GitHub is that source code manager. We'll talk about GitHub in detail later, but for the time being, let's just assume it's an important tool which is used along with Git, right? So over here we can see the project, and here are the changes. Like there's a person named Jack and he made this change, and before this there's a person named Andrew and he made this change. So we can see all the changes over here, right? If I just open this, then I will be able to change that. Yes, this person made this change in the file, for example, है ना? Are you guys getting my point? Logs जैसे बन जाते हैं. Yes भैया. Yes sir. Yes. I guess someone was asking a question. Can you repeat, please? नहीं, मैं बता रहा था कि log जैसे बन जाते हैं. Yes, हाँ logs बन जाते हैं, मतलब हाँ logs ही बोलेंगे एक तरह से. History would be the most appropriate word, but yes, we can call them as logs also. No issues with that. भैया एक क्वेश्चन. So हाँ बोलो. VCS और Git में डिफरेंस क्या है? यार VCS और Git में लिटरली कोई डिफरेंस नहीं है. Git एक एग्जांपल है VCS का, ठीक है ना. Git जैसे मतलब और भी टूल्स हैं, मैंने जैसे बताया था अभी सबवर्जन एक बहुत आई गेस सबवर्जन ही है ना. हाँ सबवर्जन है, ये भी एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल है. इसके अलावा मर्क्यूरियल है ना. मर्क्यूरियल भी एक. Azure as well, no? हाँ, can you repeat? We have Azure also, no, for managing all these. Yeah, actually Azure is not basically a version control system, right? Azure is a cloud platform which provides many services. It's not a version control system. For example, Azure is also providing its virtual machines, about which we are going to talk tomorrow, right? So there are services which are being provided by Azure. So yes, that's a totally different thing. I hope you got the answer. Yeah. Yes, perfect. वैसे आप Git Kraken क्यों नहीं यूज करते? हम GitHub ही क्यों यूज करते हैं?
Yeah, basically it varies from organization to organization, and people just use whatever source code manager they want. But GitHub is the most commonly used source code manager. For example, the whole, almost not whole, I can say, but most of the open source code base is available on GitHub. I can assure you of that. Understood? Yeah. Nice. Any more questions? Okay, so I guess I can move ahead. Yes, so as you can see, all the changes over here, that yes, this guy changed, this guy made this change yesterday, and so on and so forth. So basically all hello, actually you're not audible. Your voice is cracking. Okay, no issues, I can just go ahead. So basically all these things, all these changes which are being tracked, all these changes are done or tracked with the help of Git, right? So basically Git tracks all the changes that are being done by the user in the code. You can simply revert back to the previous code, and as well as you can move forth, or we can just move forward to the um, uh, late to the latest release if you want to, right? So you can just simply move Excuse back me, and forth. Bhaiya. Ha. Bhaiya, can we get access to the recording? Because today we are facing a lot of connectivity issue due to rain. No issues, no issues. I guess the recording will be shared on the WhatsApp groups if that's not an issue. Bhaiya, could you send it to mail because I'm not in the WhatsApp group. Okay, no issues. The recording will be sent. Okay, I'll make sure that the link of the recording will be sent to each one of you on the mail if that's not an issue, right? धैर्य यूट्यूब पे डाल देंगे अपने उस पे अरे चैनल पे Okay, भैया पीयूष आपका भैया, ठीक है। चैनल का नाम हाँ वो आपको अरे पिंग कर दूंगा मैं एक बार यहीं पे भैया मेरे को आप अगर हो सके तो WhatsApp पे भेज दो, मैं फिर यहाँ डाल दूंगा ना उसमें। हाँ मैं दिखा दूंगा स्क्रीन मैं पे। भेज देता हूँ ठीक है लिंक भेज देना। ओके परफेक्ट। हम्म हाँ यार, तो आगे चलते हैं। ठीक है, so I guess now we are having a bit of theoretical knowledge about Git, and now the question is how exactly can we put Git in our daily use? एक्चुअली काफी सारे लोगों ने अभी फिर से ज्वाइन किया है, तो थोड़ा सा गिट का एक बारी छोटा सा दे दे फिर से। Okay, no issues. I'll just repeat a bit. I guess I'll just repeat from the version control system if that's not an issue. है ना? Hello. ठीक है. So basically I just told everyone about the version control system. When we use a project, each project, let's say it is having a version 1.1 and it later shifted to a version 1.2, right? So to maintain different versions of an application, we need some kind of tool or some kind of support, है ना? So that tool is basically called a VCS. In another word, it is called a version control system. Okay, and there are multiple examples of version control system. First one is Git, second one is Mercurial. But in today's session, we are just going to talk about Git because it is the most commonly used one. Perfect. So that's all about Git. I just summarized about Git in brief. So I guess all of you are having theoretical knowledge about Git. So I guess we can just move forward, and I can just show you how you can use Git in your project. Basically, before using Git, you have to first install it, and there is a website called gitscm.com. You can just Google Git and it will show Git installation. डाउनलोड्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, मतलब अकॉर्डिंगली इफ यू आर यूजिंग macOS, Linux, Ubuntu or whatever it is, you can just simply download your client accordingly, है ना? तो ऐसा सीन है. So I guess इंस्टॉलेशन में कोई इशू तो नहीं आएगा क्योंकि इंस्टॉलेशन के अंदर विंडोज का करके दिखा देता हूँ एक बार मैं. 32-34 बिट, ठीक है. ये एक क्वेश्चन है. हाँ गो अहेड. गिट जो है वो रास्पबेरी पाई, रास्पबियन इस सब पे चल जाएगा?
यार देखो, बेसिकली आपको वर्जन मेंटेन करने हैं। अगर वहाँ पे आप किसी सॉफ्टवेयर पे कोड कर रहे हो, है ना, और आपको वर्जन मेंटेन करने हैं, तो आप गिट को सिंपल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। So as you can see on my screen, बेसिकली यार ये सिंपल एक सेटअप है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करनी, यू जस्ट हैव टू क्लिक नेक्स्ट एंड नेक्स्ट अगेन एंड अगेन, और आप गिट इंस्टॉल हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू डू। तो आई गेस इसमें कोई इशू आएगा नहीं। अगर स्टिल कोई इशू आता है, आप अभी कर लो, स्टिल कोई इशू आता है, यू कैन आस्क मी ओवर हियर, नो इश्यूज विद दैट, क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सो आई वोंट बी इंस्टॉलिंग इट अगेन एंड अगेन, है ना। सो यस, एज्यूमिंग कि मैंने गिट इंस्टॉल कर लिया है, आप भी अभी साथ साथ इंस्टॉल कर लो, कोई इशू है पूछ लो मेरे साथ साथ, और मैं अब इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। If you guys want me to wait for 5 minutes, then I can, no issues with that. और कोई गिट इंस्टॉल अभी कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, मुझे बता दो। Hello, anyone? Hello. I've already installed the Git. Like I have been using it before. Okay, so I guess that's perfect. That's perfect. Right. So हाँ, वेट कर लेंगे, फिर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, ओके। बाकी सब अगर जिसने नहीं करा वो इंस्टॉल कर लेता है एक बार, देन वी कैन स्टार्ट। Okay, I guess I'll just wait till 6:34 for 5 minutes, I guess, and then I'll just continue. Okay. Right. Perfect. Okay, no issues. Till then, if any of you are having some doubts related to Git, then you can just shoot all of your doubts to me, and I'll just try to answer most of them, right? So you can just raise your hand, and you can just or you can just simply unmute yourself. Just go ahead. Yeah, meanwhile we are waiting. Can you just give a brief on your journey throughout the first year, how you cracked GSOC, and meanwhile we are waiting for 5 minutes. Okay, no issues with that. I guess it will be a bit off topic, but okay, I'll just try to tell my journey in brief, है ना? So basically, यार, I completed my Google Summer of Code last year, है ना? So उसमें I was contributing to Synfig, और यार उसमें सारा कोड जिसमें मैं contribute कर रहा था, it was in C++. So I was not contributing in JS and some other language. Currently, I am learning JS, and I'm aiming to be a full stack developer, right? But at that time, I was a bit confused, so I decided to contribute in C++ based organizations and C++ based projects. I guess there's a framework, GTK. हाँ, बेसिकली C++ में जब आप प्रोजेक्ट डेवलप करते हो तो आप इस फ्रेमवर्क पे करते हो, और भी हैं, फॉर एग्जांपल Qt हो गया हमारा, ना, तो ये मतलब C++ के फ्रेमवर्क्स हो गए। GTK हमारा लिखा हुआ है C पे। बेसिकली जो GTK है, ये इसमें कोड C पे होता है, तो इसकी एक बाइंडिंग है C++ के साथ, उसका नाम है GTK-MM. So I was coding in this, right? It's a bit outdated, so मतलब मेरे पास डॉक्स वॉक्स भी काफी दिक्कत थी, बट yes, I was coding in this. So अगर आप में से कोई भी अगर GSOC के लिए एम वगैरह कर रहा है, तो मतलब जस्ट स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, है ना। आई गेस आपको आज के सेशन के बाद you guys will be knowing कि हाँ Git क्या होता है, GitHub क्या होता है, so there won't be any issue with that. So I guess you can just start contributing to any of the organizations you want. If you still want some names of big organizations, then I will share it on Discord or mail or whatever it is. You can just add it in the review of the forms, of the Google forms that I have shared, and I'll just simply add and I will simply mail whatever it is to a respective email. That's not an issue, है ना? Whatever guidance you want, whatever thing you want to ask about GSOC or something like that. Okay? Okay, thank you, Bia. No issues. Anyone else? Bhaiya, can I use Python for GSOC? Python for GSOC. I guess yes. I guess if you have seen the GSOC, in fact, the most used languages of GSOC from the past, if you can just see the trend of most used languages of GSOC of the past 2 years, you will be able to observe that the most commonly used language is, I guess, JavaScript, and I guess after that it comes down to Python.
So there are a lot of projects available on Python if you want to contribute. So that's not an issue. I guess TensorFlow is a great organization if you're also interested in machine learning along with open source. So choose your interest wisely. To summarize, of course, you can contribute in Python, right? I hope you got your answer. Okay. Right. Any more questions? Okay, I guess it's done. So it's already 6:33. So if anyone of you is currently installing Git and is facing any problems, then you can just simply ask your questions. भैया गिट हमने इंस्टॉल तो कर लिया, जब उसको हम वो करते हैं रन तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, तो उसमें कौन सा वाला करना है रन? गिट जीयूआई, गिट सीएमडी या फिर गिट बैश? गिट बैश आ रहा होगा क्योंकि आगे सब फोल्डर पे करते हो राइट क्लिक, कुछ ऐसा सा आ रहा होगा ना, ये गिट बैश गिट जीयूआई, ये कह रहे हो? हाँ जी, नहीं जैसे हमने इंस्टॉल करा तो ना इसके अंदर हमें 3 ऐप दिखा रहा है, गिट जीयूआई, गिट बैश और गिट सीएमडी। हाँ तो कौन सा वाला करना है रन? गिट बैश करना है? गिट बैश कर लेना, हाँ गिट बैश कर लेना। ऑल्दो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद CLI you can use GUI as well, but I would recommend कि आप CLI पे यूज करो तो ताकि थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना आपको भी CLI का। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? Git CMD and Git Bash, I guess they are the same thing, but still I would recommend कि Git Bash यूज करो, just ignore CMD for the time being। बाकी जो GUI है बेसिकली उसमें आपको एक इंटरफेस मिल जाएगा। CLI तो मतलब पूरा आपका जो कमांड लाइन हो गया ना यार, जैसे जो CMD खुलता है आपका, ये पूरा कमांड लाइन हो गया आपको, तो Git Bash आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा एंड GUI में you will be having some kind of window कि हाँ उस पे आप कर सकते हो, उस पे आप अपने चेंजेस को विजुअली देख सकते हो। तो मैं CLI रिकमेंड करूंगा। ठीक है। भैया सारी सेटिंग्स डिफॉल्ट रखनी है इंस्टॉल करते हुए? हाँ, you just have to click next and next, no issues with that। Most probably अगर कोई इशू आता भी है तो बता देना। नहीं भैया इशू नहीं आया, इंस्टॉल हो जाए तो उसे ओपन किससे प्रेफर करे, विजुअल स्टूडियो से या क्रोम से? विजुअल स्टूडियो क्रोम से आई गेस, ये तो कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। वहाँ पे गिट बैश का आ रहा होगा ना, अगर आप किसी फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे तो गिट बैश का ऑप्शन आ रहा होगा, गिट बैश हियर, ओपन गिट बैश, ऐसा कुछ आ रहा होगा, तो गिट बैश खोल लेना आपको, बस एक कमांड लाइन इंटरफेस खुल जाएगा इफ यू आर एबल टू गेट माय पॉइंट। और धैर्य कमांड लाइन पे सबको एक बार मतलब वर्जन वाला अरे बता दे, जिससे मतलब चेक कर। हाँ ओके, मतलब एक बार बता देता हूँ। हाँ जी भैया ओके। तो आगे से कंटिन्यू करते हैं ना, सबका इंस्टॉल हो गया होगा। अगर कोई भी इंस्टॉल कर रहा है तो बता दो, आई जस्ट वेट फॉर 1 more minute, नॉट एन इशू। इंस्टॉल हो गया ना सबका? शैल आई मूव फॉरवर्ड? हाँ जी परफेक्ट है, ठीक है, नाइस। हाँ यार, तो बेसिकली एज्यूमिंग कि आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ सिंपल सा, जिसके अंदर बेसिकली आई विल बी यूजिंग गिट, है ना। सो आई गेस क्या बेसिकली कमांड लाइन इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। फॉर एग्जांपल ये मेरी एक एजर की VM है, एक एजर की वर्चुअल मशीन है, इसके अंदर मैं कोई GUI नहीं है, जैसे विंडोज में दिख रहा होगा ना आपको कि यहाँ पे एक ब्राउजर का है, स्टार्ट मेन्यू है, ये सब GUI नहीं है। इट्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे बस आपको सिर्फ कमांड लाइन मिलता है, ठीक है ना। रोहन विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस स्टफ इन डिटेल, इन एक्सट्रीम डिटेल टुमारो इन टुमारो सेशन, so make sure to attend that as well। So I'll just create a new project over here and I'll name it as let's say Node.js, है ना। ठीक है, अब एज्यूमिंग कि मेरे यहाँ पे वो बन चुका है, एक बार मैं इसको ना यहाँ पर भी खोल लेता हूँ, cd ठीक है। तो मैंने अपने यहाँ पर भी सेम फोल्डर खोल लिया जो मेरे यहाँ पे खुला हुआ है, ठीक है ना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मतलब काफी कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा, कुछ नहीं, बेसिकली यहाँ मैंने CLI में फोल्डर क्रिएट किया, मैंने वो फोल्डर VS कोड में खोल लिया। अब कैसे खोला क्या है सब आपको कल समझ आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो यार यहाँ मैंने एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट करने से पहले मेरे को एक कमांड डालनी पड़ेगी, गेट इनिट, है ना। बेसिकली यार ये कमांड कब डालते हैं, कमांड एक फोल्डर में डालते हैं इफ यू वांट कि यार गेट को इस फोल्डर में अपना काम करना है। गेट का मेन पर्पस पता है ना क्या था? I'll just close this। हाँ, गिट का मेन पर्पस था कि मल्टीपल वर्जन मेंटेन करना। If we want that folder to maintain its multiple versions or something like that, we just had to enable it as a Git repository
What is a repository? Once again, repository is nothing but it is a analogy of folder, a GitHub analogy of folder. Basically, GitHub used the term repository for its folders, as you can see, not folders, but the parent of all folders. The topmost folder is called as a repository. है ना? Right. So I'm just enabling Git on this particular folder. So I just do git init और इसने मेरी एक Git repository initialize कर दी है. ठीक है. So that's all you need to just enable Git on a particular project. There's a command called git status. And what git status does, it basically shows the changes that have been made. I told you ना कि Git का basically काम है changes track करना. भी changes होते हैं Git उनको ट्रैक करता है. आपने कोई फाइल ऐड की है तो फाइल ऐड को वो नहीं देखेगा, वो सिर्फ देखेगा कि हाँ आपने चेंज क्या किया है. आपने चाहे वो चेंज एक लाइन का हो चाहे वो चेंज है पूरी एक फाइल का हो. Git will only look into change. The whole change will be considered, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो. ठीक है, राइट. So मैंने कहा git status, उसने कहा कोई चेंज नहीं है. मैंने यहाँ पे एक फाइल ऐड कर दी and I named it as index.js. मैंने कहा था आपको एग्जांपल में index.js बेसिकली यार एक JS फाइल है जिसको मैं Node.js पे रन करूंगा. Node.js बताया था क्या है, कुछ नहीं है, एक एनवायरनमेंट है JS का जहाँ पे आप .js की फाइल्स ब्राउजर के अलावा अपने CLI में कमांड लाइन में भी रन कर सकते हो. ठीक है. अब मैं लिखता हूँ git status. चीज शो रही है यहाँ पे. हेलो एनीवन? हाँ भैया. बता पाए कि ये चीज जो शो हो रही है ये क्या, ये मतलब क्या एम्फसाइज करना चाह रहा है हम लोगों को? Anyone, if anyone want to answer, feel to do so. Hello. Hello, yes, go ahead. Can you repeat your question actually? Basically my question is कि यहाँ पे कुछ चीज शो हो रही है ना. पहले मैंने git status किया, it was not showing anything important. तो उसके बाद मैंने index.js एक फाइल क्रिएट की सेम फोल्डर में. फिर git status करने पे it is showing कि हाँ untracked files this and index.js and so on and so forth जो भी है. What is the meaning of this? जब आपने लाइक git status लिखा था वहाँ पे जब भी आपने लाइक रेपो बनाई थी वहाँ पे कोई फाइल नहीं थी. अब आप चेक करें तो वहाँ पे कोई फाइल आ गई है. अब जब इसे आप git ऐड करेंगे तो ये चीज कि जो फोल्डर है जहाँ पे आपने GitHub भी क्लोन करा है वहाँ पे वो फाइल का एक्सेस ऐड हो जाएगा. तो इसके बाद क्या होगा, उसमें जो भी आप कोड करेंगे और इफ वी विल पुश द कोड तो वो सर्वर पे गिट पे जाके एंड वो आपके रेपो में दिखाई देगा. तो दिस इज बेसिकली परफेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट. बेसिकली यार जो आपका नाम क्या था? भव्या. ओके नाइस. वंस अगेन ओके, सो थैंक यू सो मच भव्या for telling me about this once again. तो बेसिकली यार जो भव्या ने बताया एकदम सही था. ठीक है. बेसिकली यार यहाँ पे जो भी चेंजेस हो रहे हैं ना, अगर आपने कोई भी चेंज किया वो ट्रैक होके यहाँ दिख जाएगा कि यार हाँ हमने अभी index.js फाइल क्रिएट की है. बट यार यहाँ पे कीवर्ड लिखा रहा है अनट्रैक्ड फाइल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनट्रैक्ड फाइल? है ना. स्टार्टिंग में इसको फाइंड नहीं हुआ था बट लाइक आप जब आपने दोबारा उसको git status करा देन वो मिल गया फाइल. हाँ यस, इट्स समथिंग लाइक दैट. बेसिकली यार एक कंसेप्ट होता है स्टेज का हो या स्टेजिंग का हो. आई विल कॉल इट स्टेजेस. बेसिकली गिट इंटरनली मल्टीपल स्टेजेस मेंटेन करता है. पहला स्टेज है कि हाँ आपके में कोई चेंज नहीं है. फिर मैंने index.js अपनी फाइल डाली और मेरे में एक चेंज आया, एक सिंपल चेंज. आई एम नॉट श्योर कि वो चेंज सही है या गलत है, बस एक चेंज है वो. गिट को उस चेंज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है. गिट को कोई नॉलेज नहीं है कि वो चेंज किस चीज के बारे में. इज इट अ करेक्ट चेंज, इज इट अ रॉन्ग चेंज, उसको कुछ नहीं पता. उसको बस ये पता है कि हाँ एक चेंज हुआ है एंड दैट चेंज इज अनट्रैक्ड. ठीक है ना. इसके बाद क्या हुआ, हमने वेरीफाई करवाया कि हाँ या तो ये सही है. अगर सही है उसकी एक कमांड है, अगर गलत है उसकी एक कमांड है. ठीक है. अगर ये गलत है तो आई विल जस्ट मेक श्योर, जब मैं गिट स्टेटस करूंगा सो आई विल जस्ट मेक श्योर कि हाँ ये गलत है एंड आई विल जस्ट गिट स्टैश. आई गेस गिट स्टैश से भी नहीं हो रही क्योंकि फाइल भी एम्प्टी है ना. तो बस मैं देखूंगा कि हाँ यार ये फाइल खराब है और बस मैं इसको यहाँ से सिंपली डिलीट कर दूंगा और वो वहां से हट जाएगी क्योंकि अनट्रैक्ड है. तो मैंने इसको अगर डिलीट भी किया और गिट स्टेटस किया, हट गई.
गिट ने अभी इसको ट्रैक करना शुरू नहीं किया था, उसके लिए एक अनट्रैक्ड फाइल थी उस टाइम पे, ठीक है ना। मैंने दोबारा क्रिएट कर दी है, दोबारा करने पे शो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो भी अनट्रैक्ड है। अगर मैं अभी ये बता दें कि अगर हटाना हो तो कैसे हटेगी, एज्यूमिंग कि अगर डालना हो तो कैसे डालेगी। आई जस्ट हैव टू राइट git add डॉट। डॉट बेसिकली क्या होता है, एक सिंटैक्स होता है ना जहाँ पे मतलब हम जब करते हैं cd डॉट डॉट, जिनको मतलब कमांड लेंगे थोड़ा सा आइडिया हो, बैश का थोड़ा सा आइडिया हो, उनको पता होगा cd डॉट डॉट के अंदर डॉट डॉट Yes, मीन्स द प्रीवियस डायरेक्टरी और द पेरेंट डायरेक्टरी, है ना। डॉट मीन्स द करंट डायरेक्टरी। सो गिट दैट डॉट, यहाँ पे डॉट का मतलब है कि करंट डायरेक्टरी में जितनी भी हमारी फाइल्स हैं जो कि अनट्रैक्ड हैं उन सबको ऐड कर दो। मैंने ऐसे ही किया गिट स्टेटस पे, इट इज शोइंग कि हाँ एक नई फाइल आपकी ट्रैक हो रही है। ट्रैक मतलब इस स्टेज में आ चुकी है कि हाँ दैट फाइल इज बीइंग ट्रैक्ड राइट नाउ, और ये चेंज जो है, ये चेंज जो है वेरीफाइड है अभी तक के लिए। अब तक जो चेंज हुआ है वो सही है, वेरीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसके नेक्स्ट स्टेप होता है कि हाँ मैंने क्रॉस चेक कर लिया, सब कुछ सही है। अब मैं चाहता हूं कि ये चेंज जो है ना, ये चेंज मेरा फाइनली पब्लिश हो जाए। यूज मतलब ट्राई टू लिसन द वर्ड्स आई एम यूजिंग ओवर हियर। पब्लिश हो जाए, कहाँ पे पब्लिश हो जाए, जो हमारा मेन कोड बेस है उसमें, जो हमारा मेन कोड बेस है, और कहने से जो हमारा मास्टर कोड बेस है, ठीक है ना। मास्टर कोड बेस है मतलब सबसे जो टॉप मोस्ट कोड बेस है ना, उसके अंदर हमारा ये मर्ज हो जाए, उसके अंदर ये चला जाए, उसमें ये ऐड हो जाए। इसके लिए मैं यूज करूंगा एक फाइनल कमांड विच विल बी git commit followed by a flag called -m, जहां मैं डालूंगा मैसेज। और मैसेज क्या है, just creating, और let's just add a formal message कि let's say I just added a feature, और मैं यहाँ लिख दूंगा कि created index.js फाइल, ठीक है। ये एक सॉर्ट ऑफ सिंटैक्स है, एक सॉर्ट ऑफ मतलब सेट ऑफ रूल्स वंस अगेन जो हम फॉलो करते हैं नेमिंग के अंदर भी। मैं लिख दिया कि हाँ मैंने फीचर ऐड किया है, index.js फाइल क्रिएट करी है, और वो कमिट हो गया। अब तक किसी को दिक्कत इस पूरे मतलब कमांड लाइन के पूरे इसके अंदर, जहाँ पे किसी को कोई चीज समझ ना आई हो पूछ लो एक बार। भाई इतने स्टेज क्यों बना रखे हैं इसको करने में? हाँ दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा बता दूं पहले, बट हाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। देखो ना, स्टेज इसलिए है, हमने कहा एक बेसिकली, हाँ जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ तो बेसिकली यार क्या सीन है, स्टेजेस का मतलब ये काम है कि स्टेज, हमारे पास ये VCS जो है ना, ये एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है ना, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। और इस वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर मल्टीपल, अगर हमने चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं किया तो कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। या तो हम चाहते हैं कि हमारी चीजें जो सारी हो रही हैं वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो, कि पहले ये हो फिर ये हो फिर ये हो। तो जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स दैट वी हैव टू मेंटेन। क्या पता कोई डेवलपर हो वो यहाँ पे गलती कर दे, उसका चेंज सही हो, वो गलती से मतलब एक बार जस्ट टू कंफर्म इट अगेन एंड अगेन कि हाँ सब सही है। ऑल्दो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 कमांड्स, git add and git commit, but yes it is a standard that we have to follow. So yeah, तो अभी ये जो भी हम कर रहे हैं वो अभी लोकली हमारा सेव हो रहा है ना? हाँ गिट कमिट करते ही वो फाइल कंफर्म हो चुकी है। गिट स्टेटस अगर मैं करूंगा एंड इट जस्ट शोड कि हाँ कोई नया कमिट नहीं है, कोई नया चेंज नहीं है, इस चेंज को वो वेरीफाई कर चुके हैं इंटरनली, ठीक है। और हाँ लोकली सेव हुआ, यस राइट। और फिर बाद में हम उसे गिटहब में अगर हम जोड़ दें उस यस फोल्डर को। आई टेल लेटर कि हाँ गिटहब पे वो चेंज कैसे डालना है। अब तक सबको क्लियर है? ठीक है। हेलो एनीवन, कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो, तो चलते हैं आगे। ठीक है ना सब तक, मतलब अब तक सब कुछ जो है वो सही है ना? एक ही की आवाज आ रही, कोई और बंदा, कोई और थोड़ा सा। और भैया एक क्वेश्चन था, जैसे मेरे हाँ। में मैकओएस में डायरेक्ट वो खुल गया था, मतलब GUI मोड में खुल गया था, तो उसे कैसे यूज करूं एकदम? GUI का मैं दिखा दूंगा। GUI बेसिकली यार हमारे ऐसे कि नहीं GUI में तो कोई दिक्कत हाँ नहीं आ रही, GUI तो मेरे को पता है कैसे होगा। बेसिकली यार गिट बैश पे आपको खोलना पड़ेगा आई गेस। मैक ओएस में ब्रीव होता है ना, तो आप आई गेस CLI के अंदर डायरेक्टली भी कर सकते हो इंस्टॉल, की ब्रीव इंस्टॉल ऐसे ऐसे करके गिट जो भी कमांड होती है उसकी। ओके तो उससे वो CLI के अंदर भी आ जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। हाँ जी उसमें डायरेक्ट पाथ में डालना होगा उसमें भी। मैक ओएस की बात कर रहे हो भैया?
हाँ हाँ मैक में भी। हाँ तो ये डाउट किसका था? हाँ तो नवनीत यार, जैसे भैया बता रहे हैं ना, पाथ में डालना पड़ेगा, एक बार देख लेना, फिर भी कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है, टेल यू लेटर। ओके, धैर्य भाई, हु इज दिस? उजैर। हाँ गो अहेड। तो मतलब मैं बस ये पूछना चाहता था कि ये स्टेजिंग का कॉन्सेप्ट शायद इसलिए भी होता होगा ना, ताकि हम सेलेक्ट कर सकें कि हमें क्या ट्रैक करना और क्या नहीं, वरना तो बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली यार हम हर बार सिर्फ एक फाइल ऐड नहीं कर रहे होंगे ना यार, हम इकट्ठे बंच में हो सकता है वी विल बी एडिंग एटलीस्ट 10 फाइल्स, 50 फाइल्स, 100 फाइल, जो भी मतलब होगा डेवलपर का अपना, तो उस हिसाब से मैनेज करना थोड़ा ईजी हो जाएगा कि हाँ इस स्टेज में हो सकता है कि कुछ फाइल्स एडिशनल ऐड हो गई हैं जो नहीं ऐड करनी थी। फॉर एग्जांपल कुछ कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हो, कुछ कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स आपके जो आपको रिवील नहीं करने थे और गलती से आपने डाल दिए, तो आप उनको अलग अलग स्टेजेस में हटा सकते हो कि हाँ यार अब मेरे को ये हटाने हैं तो मैं इसको बैक कर देता हूँ, ताकि सिर्फ आगे जितने स्टेजेस में चाहता हूँ उतनी जाए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? बेसिकली हमारे पास कंट्रोल आ जाता है ना उससे, हाँ एग्जैक्टली, यस वरना एग्जैक्टली, अननेसेसरी चेंजेस भी आ सकते हैं और वो भी जा सकते हैं ना डायरेक्ट वहाँ राइट पे। राइट राइट राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है ना? भाई हाँ एम्प्टी थैंक यू। फाइल्स में ऐसा हो रहा है, पर अगर हम कुछ हम डालें अगर उस फाइल में तो कैसे दिखेगा वो? समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन, कैन यू रिपीट? जैसे अभी हमने सिर्फ फाइल बनाया है और हाँ पर हाँ अगर हम सही में उसमें कुछ एडिट कर देते हैं, कुछ प्रोग्राम लिख देते हैं, तो फिर कैसे दिखाएगा हमको? yes, just wait for a few more minutes, I will be writing a program in it and I'll just push it on GitHub also, so just wait for a few more minutes, I'll just do all that stuff also. Okay, ओके right, so आगे चलते हैं फटाफट से, थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट भी अपने पे। तो हाँ तो कहाँ थे हम? गिट पे थे हम, वो गिट समझ आ गया कि हाँ गिट का कंसेप्ट क्या है, हमने एक अपना पहला कमिट मार दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यार ब्रांचिंग का, उसको हम एक बार कवर कर लेते हैं। ठीक है, बेसिकली यार to understand branching, basically let's take an example of a very famous web application. ठीक है, so let's assume there is a web application, और उसका कोई नाम है, let's suppose उसका नाम है Amazon। ठीक है, Amazon नाम है उसका। हाँ, so in that case let's suppose I am a developer over there and I made a serious blunder. I mistakenly deleted a very important file, मतलब उस कोड बेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल थी, वो मैंने डिलीट कर दी। ठीक है, और लेट्स सपोज वो फाइल डायरेक्टली कनेक्टेड थी हमारी वेबसाइट से, कि जो भी चेंज हमारा यहाँ पे होगा वो डायरेक्टली जो वेबसाइट पे शो हो जाएगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ CI/CD जो कि कल कवर होगा। ठीक है, लेकिन लेट्स अज्यूम कि यहाँ किसी तरह से ये सेटअप हो रखा है। ठीक है, सो मैंने किसी तरह से कर रखा है, तो कोई भी चेंज जो कोड बेस में होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि मैंने मिस्टेक करी है, बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक दैट वेबसाइट विल बी डाउन, वेबसाइट कुछ टाइम के लिए फट जाएगी, कोड बेस सारा खराब हो जाएगा और वेबसाइट डाउन हो जाएगी, यू विल गेट अ 404 पेज। ठीक है ना, तो ऐसा ऐसा सीन होगा। सो ड्यू टू दिस द वेबसाइट इज गोइंग टू लूज 1000 and thousands ऑफ कस्टमर्स, है ना, क्योंकि अमेजन एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे आई गेस आवरली की, अगर हम आवर के हिसाब से देखें तो आई गेस थाउजेंड ऑफ यूजर आते होंगे, मे बी लैक्स, नॉट श्योर। ठीक है ना, तो उस हिसाब से अगर देखें तो अगर ये हाफ एन आवर भी अगर डाउन रहती है तो आधे घंटे में द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ मनी। तो इज इट करेक्ट, इज शुड इट हैपन लाइक दैट? ऑफ कोर्स नॉट। द कोड जो मतलब कोड है जो हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड है ना यहाँ से, वो एक अलग होना चाहिए, टोटली शुड बी सेपरेटेड, कि हाँ यार ये कोड बेस अलग है, डेवलपर ए जिस पे काम कर रहा है वो अलग है, बी जिस पे काम कर रहा है वो अलग है। अगर ये कोड सही है, अगर ये कोड सही है तो इसको यहाँ डाल दो, अगर ये कोड सही है तो इसको भी यहाँ डाल दो, ऐसा ऐसा कोई फ्लो होना चाहिए ना यार। गेटिंग माय पॉइंट? रिपीट करो जी एक बार। हाँ, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट्स सपोज मेरा कोई कोड जो है होस्ट हो रखा है और मेरी वेबसाइट उस कोड से लाइव चल रही है, मैंने कोड में कोई भी चेंज किया, वो चेंज वेबसाइट में शो होगा। ठीक है, मैंने एज अ डेवलपर एक गलती कर दी और मैंने गलती से कोई फाइल डिलीट कर दी, मेरे डिलीट करने से कोड बेस सारा खराब हो गया, वेबसाइट डाउन हो गई। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। ऐसा होना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। सो यार अगर एक डेवलपर डायरेक्टली कोड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, डायरेक्टली कुछ भी कर सकता है, फिर तो यार फिर तो कुछ भी हो जाएगा ना यार। अगर उसको आता नहीं है, ठीक है, ड्यू टू हिज लैक ऑफ नॉलेज और समथिंग लाइक दैट, जो भी है उसने कुछ गलती कर दी, क्योंकि यार ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस तो गलती करेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें, हम भी मतलब गलती को कितना अवॉइड कर लेंगे। सो कोई चीज होनी चाहिए जिसे मेंटेन कर रहे हो हम। बेसिकली यार एक फ्लो होता है जिसको मेंटेन करना होता है हमें,
कि हमारा जो पूरा ओरिजिनल कोड बेस है ना वो अलग रहे, ए और बी जो है ये बेसिकली उसकी एक कॉपी में काम कर रहे होंगे। बात समझ रहे हो मेरी, क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी। इट विल बी, जो इस कोड बेस में ए काम कर रहा होगा, इट विल बी अ रेप्लिकेशन ऑफ द ओरिजिनल कोड बेस, ठीक है ना? ये रेप्लिकेशन होगा वो ओरिजिनल कोड बेस का। लेट्स नेम दिस ओरिजिनल कोड बेस कि हाँ ये जो मेरा ओरिजिनल कोड बेस है, इसका नाम को दे देते हैं हम, क्योंकि यार ये टॉप मोस्ट है, इसका नाम मैं दे देता हूँ मास्टर, ठीक है ना? मास्टर कोड बेस है ना, सबसे ऊपर यही है, इससे ऊपर कोई है नहीं। मैंने इसका नाम लेट से मास्टर दे दिया। इसके बाद अगर ए ने कोई काम दिया, अगर ए कोई भी काम कर रहा है ना, तो वो एक अपना अलग कोड बेस बनाएगा जो कि इसी की रेप्लिकेशन होगी, उसमें काम कर रहा होगा। अगर ठीक हो गया सब कुछ तो वो डायरेक्टली इसमें इसको डाल देगा। कैन वी से एक ब्रांच होगी, एक लाइन होगी, एक कुछ भी, एक थ्रेड कहो, कुछ भी कहो, मास्टर नाम का, जो अनब्रेकेबल होगा, वो हमेशा चल रहा होगा। अगर ए को काम करना है कुछ, अगर ए को कोई नया फीचर डालना है, वो उसमें से नया कुछ निकालेगा और बाद में ज्वाइन कर देगा। अगर बी को कुछ काम करना है, बी निकालेगा और बी ज्वाइन कर देगा। ये जो विजुअलाइजेशन है, ये समझ में आ रही है? हाँ जो मास्टर ब्रांच है हाँ जी, वो मेंटेन रहेगी, उसमें किसी ने कुछ नहीं छेड़ा। अंडरस्टूड? किसी को अब तक कोई भी दिक्कत हो पूछ लो, कोई इशू नहीं है। जब तक वो काम करेगा तब तक एक तरीके से सेमी ब्रांच में ही काम करता रहेगा। हाँ यार, बेसिकली मास्टर ब्रांच कोई नहीं छेड़ेगा, इसके अंदर चेंज तब जाएगा। मान लेते हैं ए का कोई बॉस भी है, उसका नाम है सुपर ए, ठीक है ना? सुपर ए नाम है उसका, और वो जब इसके चेंजेस को अप्रूव करेगा ना, तो ही वो चेंजेस में आएंगे। तो सुपर ए ने देखा कि हाँ यार ये चेंजेस तो ठीक है, उसने डाल दिए। अब मास्टर में वो चेंज आ चुका है। अगर ये कोड फट रहा होगा ना, अगर कोड खराब होगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे चेक हो जाएगा कि हाँ यार, हम मतलब बेसिकली CI/CD की हेल्प से दोबारा से हम टेस्ट से लगा सकते हैं कि हाँ कोड बेस चल रहा नहीं चल रहा है ना। तो हमने टेस्ट लगा दी कि हाँ कोड बेस फट रहा नहीं फट रहा, और यहाँ पे चेक हो गया। और अगर फट रहा है तो हमने बोल दिया कि हाँ चेंजेस आपके खराब है, वो ठीक करो। अगर सब सही है, हमने मर्ज कर दिया। अंडरस्टूड? भाई मर्ज करने के बाद हम रिवर्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल रिवर्ट कर सकते हैं। बेसिकली यार गिट का पर्पस यही है, मतलब गिट का जो पर्पस है वो है यही कि अगर मर्ज कर दिया, अगर अभी भी कोई गलती से मर्ज हो गया, क्या पता डेवलपर ए, क्या पता ये जो सुपर है ये भी मिस्टेक कर दिया, गलती से मर्ज कर दिया उसने। अगर गलती से मर्ज कर दिया, स्टिल दिस चेंज कैन बी रिवर्टेड वेरी इजीली। सिर्फ एक कमांड गिट की और चेंज रिवर्ट हो जाएगा। ठीक है? ठीक भाई तो क्या ब्रांचेस की भी ब्रांचेस होती हैं या फिर सिर्फ बिल्कुल मास्टर होती से? हैं, बिल्कुल होती हैं, बिल्कुल होती हैं। एक मास्टर ब्रांच है ना, एक वेबसाइट की मास्टर ब्रांच है। मैं लेट से उसके हेडर पे काम कर रहा हूँ अब, ठीक है? तो मैंने एक ब्रांच बना ली अपने हिसाब से, जिसका नाम होगा हेडर, या फिर उसका मैंने नाम दिया धैर्य हेडर फिक्स, जो भी देना मुझे अपने हिसाब से, मैंने उसका ये नाम दिया। ये ब्रांच बन गई और ये ब्रांच चल रही है, अभी तक मर्ज नहीं हुई। अब लेट से हेडर के अंदर भी मैं चाहता हूँ कि यार हाँ मैं कोई इसमें, मतलब हेडर के अंदर भी यार लेफ्ट वाला पार्ट अलग होगा और राइट वाला अलग होगा। मैं चाहता हूँ कि यार इन दोनों में कुछ काम करने वाला हूँ मैं, तो मैं उनको अलग से करूँ, मैं साथ में कंबाइन ना करूँ ना, ताकि एटलीस्ट जहाँ तक जो काम है वो खराब ना हो मेरा। सिंपली मैं यहाँ से 2 ब्रांचेस क्रिएट कर दूंगा, मैं 2 ब्रांचेस क्रिएट हो जाएंगी यहाँ पे भी, सिंपल। अंडरस्टूड है ना? जो ये हाँ 1 हाँ ब्रांच हो हाँ, गई और ये हमारी 2 ब्रांच हो गई। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं नहीं नहीं। क्लियर और है अब तक? ये, हाँ हाँ और भाई ये जो आपकी ब्रांच की जो ब्रांच है, जो सब ब्रांच है, फिर हाँ उसे हाँ। वापस आप वाली ब्रांच में मर्ज करने के लिए परमिशन आप दोगे ना? यार देख, अगर मैं ही मर्ज कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखिए ब्रांच अगर होगी एज्यूमिंग कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ इसको, मैं ही काम कर रहा हूँ, तो ये ब्रांच मेरी लोकल में होगी ना यार। नहीं, तो ब्रांच मेरे आप लोकल। किसी और को भी दे सकते हो ना, या कोई और भी दे सकता है ना? अगर मैं गिटहब पे, जैसे कि मैं गिटहब के बारे में बताया नहीं अभी, पर अगर मैं गिटहब पे पुश मार दूं इस ब्रांच का, अगर मैं चेंजेस अपने गिटहब पे डाल दूं, तो वहाँ पे और को भी दिख जाएगी। वो अपने हिसाब से देख लेंगे कि हाँ यार ये ब्रांच सही है। अगर मैं बोलूंगा कि हाँ इसको मास्टर में डालना है डायरेक्टली, वो देख लेंगे कि हाँ ये मास्टर में जा सकती है, इसमें जो चेंजेस किए वो देख लेंगे अपने हिसाब से, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है ना? ऑफ कोर्स यार ठीक आपको है लग रहा भाई। होगा बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ब्रांचेस मर्ज कैसे होंगी यहाँ पे, और एक और कोई और लूपहोल मिल जाएगा। तो यार ये काफी प्रैक्टिस की बात आता है। फॉर एग्जाम्पल आई बीन यूजिंग गिट फ्रॉम पास्ट ऑलमोस्ट पास्ट 2 years, है ना? सो आप भी जब यूज करोगे तो आपको भी जो है चीजें, आपकी भी जो चीजें सामने आएंगी कि हाँ यार गिट में ये दिक्कत होती है, ऐसा ऐसा होता है। तो आप यूज करो, जो दिक्कत आए फील फ्री टू पिंग मी एनी टाइम।
I would just love to answer all of your questions or all of your doubts. ठीक है, तो सही है. So अब तक जो है उसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ अगेन. वो GitHub की रेपोजिटरी थी फेसबुक की रिएक्ट वाली. यहाँ पे ना ब्रांचेस होती हैं. इनकी जो टॉप मोस्ट ब्रांच है ना, उसका नाम इन्होंने मेन रखा हुआ है. और ये देखो इस तरह से अपने कोड बेस को मैनेज करते हैं कि हाँ ये ब्रांच 0.3 वर्जन की, 0.4 वर्जन की, ऐसे ऐसे करके. ये किसी ने अगर कोई पैच डाल रहा है तो वो सकल से एडिटर जो कि मास्टर में मर्ज होगा तो उसने ऐसे ब्रांच नेम बना दिया. समझ रहे हो? ये एक बंदा गया ना जिसने कोई पैच डाला तो उसका पैच 1, फैब्रिक में कोई जो क्लीन अप करा, तो ऐसे ऐसे जो है ब्रांचेस के नाम डाल के आप अलग अलग अपना पूरी तरह से सेपरेट काम कर सकते हो. ठीक है ना? इतना अंडरस्टूड है? हाँ ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक बार अपनी अब थोड़ा सा ना हम देख लेते हैं गिटहब के बारे में फटाफट से. तो मेरा गिट पे थे हम, गिट हमारा हो चुका है. व्हाट इज गिट? वर्जन कंट्रोल सिस्टम. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, गिट हो चुका है. व्हाई यू शुड यूज गिट? अगेन ये कंसेप्ट ब्रांचिंग का जो आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा अब तक. आगे चलते हैं. गिट इन द प्रोजेक्ट. मैंने इनिशियलाइज भी कर दी है एक फोल्डर को गिट रेपोजिटरी की तरह. मैंने कहता ना गिट इनिट वही कमांड है, इनिशियलाइज कर दिया मैंने. आगे चलते हैं गिटहब क्या होता है. थोड़ा सा गिटहब का देख लेते हैं यार. गिटहब कुछ नहीं है. गिटहब बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को मुझे अगर फॉलो करना तो मुझे फॉलो कर सकते हैं गिटहब पे, कोई इशू नहीं है. आई जस्ट शेयर द लिंक. हाँ, तो गिटहब बेसिकली क्या होता है, इसमें अलग अलग ना रेपोजिटरीज बनती है. फॉर एग्जांपल ये रेपोजिटरी ले लेते हैं, है ना. इस रेपोजिटरी के अंदर आपका कोड बेस यहाँ पे आ जाता है ना. अब मान लेते हैं सुपर ए को ए से कुछ काम करवाना है हेडर पे, तो वो सिर्फ एक इशू क्रिएट कर देगा कि हाँ यार हमको हेडर पे काम करवाना है. एक इशू पे गए, इशू पे न्यू इशू पे गए. अब जैसे यहाँ पे कैटेगरी सेट हो रखी है, इट डिपेंड्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कि उन्होंने कैसे अपनी पूरी जो गिटहब का रेपो वगैरह उन्होंने कैसे सेटअप की हुई है. इन्होंने ऐसे करा हुआ है. आई जस्ट से आई आस्क अ क्वेश्चन. ठीक है ना. तो उसके बाद इसके बाद मोस्ट अभी मैं यहाँ लिख दूंगा अपने हिसाब से कि हाँ आई वांट टू के I want you guys to work on the let's suppose header part. Of course, I won't be just submitting this issue over here because it's not my repository. It belongs to someone else. But I'm just showing this as an example. ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मैंने बोल दिया want इसे बढ़ा देते हैं. I want you guys to work on the header part. मैंने ऐसे लिख दिया. ठीक है. और मैंने टैग कर दिया किसी बंदे को @ करके, जो बंदा होगा यहाँ पे जो बंदे काम करते हैं उनके नाम रिकमेंडेशन मैटर मैंने टैग कर दिया. ठीक है. तो ऐसा था. इससे क्या होगा, हमको एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी विल बी एबल टू मेंटेन कि हाँ यार करंटली हमारे ये इश्यूज चल रहे हैं. ब्रांचेस तो ठीक है, लेकिन इशू भी तो मेंटेन होने चाहिए हमारे कि हाँ करंटली ये इशू है, एक हेडर में कोई दिक्कत है उस पर ए काम कर रहा है, फुटर में दिक्कत है उस पर बी काम कर रहा है, मेन में दिक्कत है उस पर सी काम कर रहा है, बैकएंड में कोई दिक्कत है उस पर डी काम कर रहा है. ऑफ कोर्स बैकएंड की जो रेपोजिटरी है वो पूरी की पूरी अलग होगी, फ्रंट एंड की अलग होगी, बट दैट्स हाउ थिंग्स आर बीइंग मैनेज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस. राइट? अंडरस्टूड? अब तक किसी को कोई भी दिक्कत? हेलो, अब तक किसी को कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन पूछो एक बार गिटहब के बारे में. नहीं भैया. ठीक है. कोड समझ में आ गया. कोड इज जस्ट अ कैटेगरी जहाँ पे हमारा सारा कोड हमें दिख जाएगा जो हमने डाला है. व्हाट इज दिस? ये जो फाइल है ये जो शो हो रही है ये क्या है बेसिकली? यार हर एक कोड के अंदर ना एक फाइल होती है जो कि आप खुद से क्रिएट कर सकते हो. दैट इज readme.md. md यार md बेसिकली मार्कडाउन होता है. मार्कडाउन फाइल्स का एक अलग सिंटैक्स होता है बेसिकली यार. हैश अगर मैं क्रिएट कर दूं अपने लोकल में तो readme.md क्रिएट हो गई. इसका एक सिंटैक्स होता है. ये इसका मतलब होता है हेडर 1, इसका हेडर 2, इसका हेडर 3. हेडर 3 मतलब और साइज में थोड़ा छोटा होगा. मैंने लिख दिया कि हाँ यार दिस इज Node.js. ठीक है. आगे कोई भी लिखना हो तो मैं लिख दूंगा, पर हाँ ये बेसिकली एक फाइल होती है जहाँ पे हमें प्रोजेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन मिल रही होती है, और वो डायरेक्टली हमारे कोड बेस में यहाँ पे जो है ना शो होती है कि अगर कोई भी अगर किसी ने हमारा कोड बेस खोला, सो ही वोंट बी रीडिंग कि हाँ यार मैं ये फोल्डर खोलूँ, ये फोल्डर खोलूँ. ही विल जस्ट गो टू दिस सेक्शन कि हाँ यार ये रीडमी है इसकी, अच्छा इसने रिएक्ट में, अच्छा रिएक्ट में ये डिक्लेरेटिव है, कंपोनेंट बेस्ड है, अच्छा ये ऐसा ठीक है. इंस्टॉल कैसे करना, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ पे इसकी. आई शुड बी एबल टू गेट एवरीथिंग अबाउट दैट कोड बेस इन द रीडमी फाइल. आई गेस दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल, है ना.
ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक कि रीडमी क्या क्या भैया? होता है, readme.md क्या होता है? हाँ, कैन यू रिपीट? जो आपने लास्ट में बोला वो रिपीट करोगे? हाँ, ऑफ कोर्स, नो इश्यूज। बेसिकली यार readme.md आपकी एक फाइल होती है जो आपकी जो आपकी कोड कैटेगरी में काफी ज्यादा आई वुड से हाईलाइट हो रही होती है, क्योंकि एज अ थर्ड पर्सन कोई भी आपकी यार ये फाइल नहीं खोलने वाला ना यार। ये आपने ESLint इग्नोर में क्या कर रखा है काम, ये फाइल कोई नहीं खोलेगा आपकी। एज अ बिगनर ऑफ कोर्स, अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो वो तो खोलेगा ही, पर अगर आप एक थर्ड पार्टी यूजर हो या फिर अगर आप जस्ट इसको यूज कर रहे हो, इसको एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आप ये फाइल नहीं खोलोगे। इनफैक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ यार इसमें कौन सी फाइल खोलनी है, कौन सी फाइल नहीं खोलनी। बात समझ रहे हो मेरी? ये जस्ट सच अ वास्ट कोड बेस है ना। तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ इसकी रीडमी पे जाओगे। रीडमी सबसे नीचे होगी, कोड बेस के बाद रीडमी आती है। यहाँ पे उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा होगा कि हाँ उन्होंने, इस मेरा मतलब है जिसने प्रोजेक्ट बनाया होगा। अगर आप भी प्रोजेक्ट बनाते हो, सो इट्स योर ड्यूटी कि आप एक अच्छी सी रीडमी वहाँ पे प्रेजेंट करो टू मेक योर प्रोजेक्ट मोर आई वुड से प्रेजेंटेबल। ठीक है ना? तो आप वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करते हो कि हाँ यार ये मेरे में ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है। इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, बिकॉज रिएक्ट इज समथिंग विच शुड बी इंस्टॉल्ड, है ना, अगर आपको यूज करना है तो इसकी इंस्टॉलेशन कैसे है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ मिलेगी, इसमें क्या क्या कंसेप्ट हैं। ठीक है, एक यूजर फ्रेंडली एग्जांपल ताकि वो इतना मतलब कॉम्प्लेक्स में ना आ जाए। कंट्रीब्यूट कैसे करना है, अगर आपको इस पे लिटरली कंट्रीब्यूट करना है तो कंट्रीब्यूटिंग गाइड होगी, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होंगे जो फॉलो करने होंगे, है ना। ओपन सोर्स में बेसिकली क्या होता है, ये दो फाइल्स, एक कोड ऑफ कंडक्ट डॉट एमडी और एक कंट्रीब्यूटिंग डॉट एमडी, दोनों होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी होंगी यहाँ पे फाइल्स, तो आप इन दोनों की भी लिस्ट डालोगे। गुड फर्स्ट इश्यूज क्या होते हैं, कौन कौन से हैं जो भी चल रहे हैं उनकी लिस्ट डालोगे, और ऑफ कोर्स ये लाइसेंस डालोगे। MIT1 इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ठीक है, अंडरस्टूड है? हाँ जी। ठीक है, परफेक्ट है। तो गिटहब की हमें मेन चीज समझ में आ गई। हमको सिर्फ 4 चीजें यहाँ पे समझनी है। कोड, एक इशू जो कि हम समझ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे क्रम इश्यूज में देखे ना, किसी ने इशू क्रिएट किया हुआ है कि यार ये इशू आ रहा है, भी ऐसे ऐसे इशू है, लोगों ने इस पे कमेंट्स कर रखे हैं, ये यहाँ पे बंदा काम करता है फॉर एग्जांपल आई एम एज्यूमिंग, तो उसने बताया हुआ कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या पता ये मतलब सिर्फ कंट्रीब्यूटर हो भी, तो ऐसे इश्यूज आ जाते हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको कहा था आप एक सेपरेट ब्रांच में काम कर रहे होगे और ये ब्रांच अप्रूवल के बाद मर्ज होती है। याद है ना आपको ये सब, मतलब ये जो बात मैंने कही थी? भैया यस भैया आपकी स्क्रीन शेयर नहीं है। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? शैला रीशा? हो रहा है, नहीं भैया। हो रही है भैया, हो रहा है हो रही है। नहीं हो रही है भैया। हो रही है, दिख रही किसको है। दिक्कत आ रही थी जो स्क्रीन शेयर में, मतलब किसको स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी? नवनीत एक बार आप ट्राई करो जो रीजॉइन करने का, शायद शो हो जाए। ठीक है ना? हाँ, तो यार ये ऐसा ऐसा है मेरे पास यहाँ पे। हाँ, मैंने कहा था ना अप्रूव होगा, और अप्रूवल के बाद वो मेरे जो चेंजेस है वो मर्ज हो जाएंगे मास्टर ब्रांच में। आई गेस ये मास्टर है ना मेरे, हाँ ये मास्टर है, तो ये मास्टर में मर्ज हो जाएंगे। अप्रूव कहाँ पे होगा यार? अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब आई बी सेटिंग गूगल मीट कि हाँ बंदे को बुलाओ, वो बोलेगा कि हाँ यार यहाँ पे अप्रूव होंगे, और टीम्स मीट जो भी हमारा सीन होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, वैसा तो नहीं है। इट विल बी रियली टेडियस टास्क कि हाँ एक एक फाइल के लिए मैं बंदे को बुला रहा हूँ, अपने बॉस को बुला रहा हूँ। तो उसका सोल्यूशन क्या है? मैंने जो चेंज किया है ना, मैं उसकी PR मार दूंगा। व्हाट इज अ PR? PR बेसिकली कुछ नहीं है। PR इज अ रिक्वेस्ट, इट इज अ रिक्वेस्ट दैट यू गाइस विल बी मेकिंग। ठीक है ना? इट इज अ request that one will be making to his superior, I guess, है ना, to his superior to make to merge the changes in master branch। मैं चाहता हूँ मेरे चेंजेस जो है मास्टर में मर्ज हो जाएं, मैं उसकी PR मार दूंगा अपने चेंजेस की, अगर मैं लेमन टर्म में समझाऊं। ठीक है ना? ये बहुत लिमिट टर्म है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट, आई जस्ट कांट रिकॉल द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अ पुल रिक्वेस्ट, बट यस दैट्स व्हाट इट इज। बेसिकली आप बोल रहे हो, एक रिक्वेस्ट मार रहे हो, एक रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने सुपीरियर से कि हाँ मेरे जो चेंजेस है ना इनको अपने मास्टर में पुल कर लो, इनको अपने मास्टर में पुल कर लो। मतलब समझ आ गया आपको PR का? यस किसी को कोई दिक्कत जिसको PR समझ ना आए हो? एनीवन? ठीक है यार, बहुत ही बढ़िया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
सही है। तो कोड हो गया हमारा, इश्यूज हो गया हमारा, पीआर हो गया हमारा। ऑफ कोर्स ये काम कैसे करते हैं प्रैक्टिकल में, मतलब तो वो मैं दिखाऊंगा करके अभी। इट इज नॉट दैट मच बिग ऑफ अ डील। चौथा आता है एक्शंस। एक्शंस यार क्या होते हैं, बेसिकली आप गिटहब पे ना कुछ हद तक अपना काम ऑटोमेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यार सुपीरियर के चेक करने से पहले मैंने भी कोड लिखा, वो कोड में चाह रहा हूँ कि मास्टर में मर्ज हो, वो कोड में चाह रहा हूँ कि मास्टर में मर्ज हो, बीच में उसको सुपीरियर चेक करता है, सुपीरियर चेक करता है। क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि सुपीरियर के चेक करने से पहले मैं एक ऐसा कोड लिख दूं, एक ऐसा कोड जो इस कोड को चेक कर रहा हो, एक ऐसा कोड लिख दूं जो इस कोड को टेस्ट कर रहा हो, एक बार अपने लोकल में या फिर एक बार किसी उबंटू मशीन पे रन करके देखे कि हाँ सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। बात समझ आ रही है मेरी? आई गेस किसी ने अगर कोई पीआर मारी है ना यहाँ पे, पुल रिक्वेस्ट में अगर मैं जाऊं इस चेंज में, तो जैसे कि देखो इस बंदे ने कुछ चेंजेस मारे हैं, कुछ चेंजेस किए और यहाँ पे ना एक ऑटोमेटेड टेस्ट लग रखे हैं, जैसे कि सर्कल सीआई, इट इज सीआई मींस कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन। ये उसका एक क्लाइंट है, मतलब उसका एक प्रोवाइडर है। फेसबुक अपना चेक भी है, तो यहाँ पे चेक्स हैं बिफोर कि यार ये जो रिव्यूअर्स हैं ये चेक करें एक बार यार खुद से टेस्ट अगर हो जाए तो बेटर रहेगा ना, ताकि बार बार हर बार हमें जो मैनुअली काम ना करना पड़े। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो कुछ हद तक टेस्ट सेटअप कर देती हैं यहाँ पे। अगर ये टेस्ट अप्रूव हो गए सारे के सारे तो वो आगे जाएगा। और आई गेस ये देखना इतना मुश्किल नहीं होता। पीआर में आगे जो क्रॉस लगा हुआ है मतलब यहाँ पे एक नई टेस्ट फेल हो रहा है और इतने टेस्ट केस पास हो रहे हैं सब दिख रहा है। यहाँ पे टिक है मतलब सारे टेस्ट केस पास हो गए, तो अब ये पीआर देख सकता है, जो मेंटेनर्स हैं वो भी पीआर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आई गेस जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट सारे कवर कर लिए हमने गिटहब के बारे में भी। हाँ एक पॉइंट आई गेस रह गया था एक्शंस वाला। तो ये जो ऑटोमेटेड टेस्ट है ना, ये बेसिकली हम उनका कोड लिखते हैं या उनका कोड डालते हैं गिटहब एक्शन से। जैसे कि ये है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे एक एक्शन के लॉग्स आएंगे, यहाँ पहले ये एक्शन चला, इसके जो है जो भी पूरा सीन था वो आया, ऐसा ऐसा कि पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, गिटहब का टोकन लगा, जो भी था सीन, एक स्क्रिप्ट चली, समझ रहे हो। यहाँ पे सारे के सारे एक्शंस पे ही बेसिकली आप गिटहब के इश्यूज के जो टेस्ट्स होते हैं वो भी यहीं चल रहे होते हैं। अब तक किसी को दिक्कत इन 4 कैटेगरी को जो है समझने में? आगे कैटेगरीज और भी हैं प्रोजेक्ट्स विकी सिक्योरिटी पर, लेकिन वो सब टाइम आ जाएंगे। इन चारों में किसी को दिक्कत? भाई टेस्ट कैसे लिखते हैं, मतलब किस तरह से लिखे जाते हैं? टेस्ट्स बेसिकली यार अगर आप जेएस पे टेस्ट लिख रहे हो ना यार, यहाँ पे एक फ्रेमवर्क आता है जेफ नाम का, ठीक है। जेफ फेसबुक का ही है यार, ये जावास्क्रिप्ट टेस्टिंग, इसको यूज कर लेते हैं। और भी साइप्रेस हो गया, जस्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये सब फ्रेमवर्क्स होते हैं। आपने ये फ्रेमवर्क यूज किया, आपने एक टेस्ट लिखा, ठीक है। टेस्टिंग इंजीनियर्स जो होते हैं, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यूए इंजीनियर्स होते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर्स। तो बेसिकली यार वो उनका ये काम होता है कि टेस्टिंग वगैरह के जो कोड बेस कोड लिखना। तो एक कोड लिख दिया एक बंदे ने इस लाइब्रेरी को यूज करके, वो कोड क्या करेगा, जो कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है ना हम लोगों ने, जो कोड डेवलपर्स ने लिखा है उनको उसको टेस्ट करेगा। हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ गिटहब एक्शंस में वो कोड रन करवाना है हर एक जब भी एक पीआर आएगी। वो समझ रहा हूँ। हाँ, अगर आप पूछो टेस्ट कैसे लिखना है, सो आई गेस यहाँ पे एग्जांपल हमको फुल होना चाहिए यार। एग्जांपल्स के अंदर अगर मैं एंजाइम गेटिंग स्टार्टेड लिख लेते हैं ना, जस्ट डॉक्स गेटिंग स्टार्टेड जस्ट गाइड्स के अंदर अगर देखूं मैं एनीथिंग एग्जांपल, तो इस बंदे ने बेसिकली यार इसमें ना असर्शन होती है कि हाँ अगर देखो ना, इसमें असर्शन होती है। आपने पेज खोला, आपने वेबसाइट बनाई, पेज के ऊपर ये दिखना चाहिए कि डॉक्स लिखा है, एपीआई लिखा है, हेल्प लिखा है ना। तो आपने टेस्ट बना दिया, अगर साइट खुलने पे ये सब लिखा आ रहा है तो सही है। अगर साइट खुलने पे लेफ्ट में ये सारी कैटेगरीज आ रही है, आपने एक लिस्ट प्रोवाइड करी कि हाँ ये सब लिखा हुआ आ रहा है, सही है। सेंटर में पेज की लेंथ या जो भी हमारी जो सारी कैटेगरीज है वो सारी की सारी अवेलेबल है तो सही है। ऐसा मल्टीपल टेस्ट क्रिएट करते हो। बात समझ में आ रही मेरी? और हर लैंग्वेज के लिए अलग अलग होता है यार, डिपेंड करता है ना कि आप टेस्ट किस में लिख रहे हो। पर हाँ, अगर जेएस रिलेटेड टेस्ट है तो हाँ जेएस मोस्ट कॉमनली यूज है मेरे हिसाब से, जितना मुझे आइडिया। साइप्रेस भी है, साइप्रेस मतलब काफी फेमस है। अगर किसी को टेस्टिंग में थोड़ा सा हाथ मार रहा हूँ तो साइप्रेस आजकल मतलब काफी ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है ना।
टेस्टिंग का फ्रेमवर्क है, एंड टू एंड काफी फास्ट भी है, तो किसी को देखना हो तो देख लेना। जैसा कि मैंने कहा QA इंजीनियर्स यूज करते हैं, तो वही है। ठीक है यार, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करते हैं ना यार, हमको बेसिकली गिटहब का सब कुछ समझ आ गया, कोड, इश्यूज, पुल रिक्वेस्ट, एक्शंस, बहुत सारी चीजें हैं। फोक्स और स्टार पे भी आते हैं। स्टार बेसिकली यार लाइक बटन हो गया, जैसे कि इंस्टाग्राम और ट्विटर वगैरह पे होता है ना, लाइक बटन हो गया। इफ यू आर, अगर आपको कोड बेस पसंद है तो आप स्टार कर देते हो, मैंने स्टार कर दिया, डन, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। फोक पे अगर हम फोक पे आते हैं, अगर आपको इस रेपोजिटरी की, अगर आपको इस पूरे कोड बेस की एक लोकल कॉपी चाहिए ना अपने में, अपने अकाउंट में, तो आप फोक करते हो। मैंने आगे इसको ऑलरेडी फोक कर रखा है, तो ये मेरी लोकल कॉपी है, ठीक है ना, मेरी लोकल कॉपी है। वहाँ पे अभी थोड़ी पीछे है, मतलब उनके कमेंट आगे जा चुके हैं। आई जस्ट, मैं ये कर दूंगा, मेरी जो रेपोजिटरी है एकदम अप टू डेट हो गई, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब थोड़ा सा गिटहब पे देख लेते हैं कि अकाउंट वगैरह कैसे बनता है। github.com, ठीक है। आप गिटहब पे जाओ, साइन अप करो, जो भी पूरा सीन है, ठीक है। किसी को करने में दिक्कत आए बता देना, आई जस्ट हेल्प यू गाइस आउट। 2-3 मिनट ले लो, कर लो, तब तक मैं थोड़ा सा अपना प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना। ओके देन, गिटहब पे अकाउंट बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, इट विल जस्ट टेक फ्यू मिनट्स। उसके अलावा आगे चलते हैं। आई गेस हमने डिस्कस कर लिए सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स, कोड वगैरह जितनी भी होती हैं। मर्ज पता है हमें, रेपोजिटरी पता है क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा ना यार कोड कर लेते हैं, जो कि हमें करना है, मतलब Node.js में, जो कि हमारा कोड है, जो कि हम कल उसको हम डिप्लॉय कर रहे होंगे। आज से कोड वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो हम index.js में, लेट्स सपोज आई एम क्रिएटिंग अ सर्वर। जिसको नहीं पता सर्वर क्या होता है, सर्वर इज बेसिकली अ प्रोग्राम विच इज लिसनिंग कि हाँ इस पोर्ट पे कुछ चल रहा नहीं चल रहा। पोर्ट बेसिकली यार हमारा क्या होता है, हमारे डिवाइस में ना, हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में, हमारे होस्ट में बेसिकली मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट इन द सेंस, लेमैन टर्म्स में अगर मैं कहूँ, एक ऐसी जगह, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे आप, जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ना, अगर मैंने वेबसाइट भी खोली, तो ना मतलब लेट्स से ये वेबसाइट खोलने पे एक रिक्वेस्ट जारी होगी, किसी को पता हो तो, अगर जिसने पढ़ा हो हल्का हल्का कि हाँ HTTP क्या होता है, जिसको हल्की सी नेटवर्किंग की नॉलेज हो, वेबसाइट खोलने पे ना एक रिक्वेस्ट जाती है, एक बहुत ही लेमैन टर्म्स में एक गेट रिक्वेस्ट जाती है। क्या हुआ? 3-way हैंडशेक कुछ होता है शायद से। अभी यार वो धीरे आ रही, कैन यू रिपीट? मैं बोल रहा हूँ कुछ 3-way हैंडशेक का होता है ना। अरे मतलब मैं बहुत ही लेमैन टर्म्स से पूछ रहा हूँ अभी, कि मतलब सबसे पहले ना एक गेट रिक्वेस्ट जाती है। क्या? मैं आई वाज एक्चुअली टेलिंग अबाउट 3-way हैंडशेक, तो वो TCP एंड IP जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें होता है। नहीं यार, मैं बेसिकली ना बहुत ऊपर से बात कर रहा हूँ अभी, ताकि मैं बता पाऊँ कि Node.js में वो काम कैसे होने वाला है, जस्ट सो दैट सब लोग समझ पाए, ठीक है ना। तो बेसिकली यार गेट रिक्वेस्ट जाती है, वो गेट रिक्वेस्ट किसी सर्वर पे जारी होती है, तो मैं बस वही सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ कि मैंने एक्सप्रेस का सर्वर क्रिएट किया, मैंने एक पोर्ट बना लिया जिस पे वो रिक्वेस्ट जारी होगी। लेट्स एज्यूम इट टू बी 8000, एक नंबर होता है बेसिकली, कुछ नहीं होता है, ठीक है। और मैंने बोल दिया const app is equal to express, जो कि मैं क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। बेसिकली मैंने एक एक्सप्रेस का ऐप क्रिएट कर दिया, कुछ नहीं है बेसिकली यार, एक सिंपल सा JS का कोड है, Node.js का कोड है, इनफैक्ट कुछ नहीं है इसमें। और मैंने कहा अगर कोई भी बंदा गेट रिक्वेस्ट मारता है मेरे इस वाले, मतलब इस URL पे, तो इसके लिए नोड मॉड्यूल्स नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल चाहिए, मतलब मैं अभी एक्सप्रेस में को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो मैं करूंगा अभी ये कोड लिखने के बाद। हाँ वही है। हाँ नाइस। तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रहा होगा, एक रिस्पॉन्स आ रहा होगा, और यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बाद आई जस्ट सेंड के रिस्पॉन्स में सेंड कर दे हेलो दिस इज अ टेस्ट, या फिर थोड़ा सा बेटर मैं लिखता हूँ दिस इज हाई फ्रॉम, और मैंने बोल दिया यहाँ पे कि आई गेस सही है ना इतना, अगर किसी ने गेट मारा तो, और यहाँ पे लिख देते हैं app.listen, मेरे को इस पोर्ट पे करना है, और लिख देते हैं console.log listening on port, आई गेस ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। एरर शो कर रहा है यहाँ पे, अच्छा ठीक है, सही है ना, सही है। मुझे यहाँ पे नंबर डालने पड़ेंगे, तो आई विल जस्ट डू ls में क्या आ रहा है, ठीक है, npm i express भी इंस्टॉल कर ली, कि मैं यहाँ पे एक्सप्रेस यूज कर रहा हूँ एज एन एक्सटर्नल डिपेंडेंसी, तो मैंने एक्सप्रेस भी डाल लिया। कोड थोड़ा सा बेटर कर देते हैं, ठीक है, परफेक्ट सही है। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस भी डाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बेसिकली यार एक काम करते हैं ना, अब तक जितना कोड किया है ना इसको एक बार ना गिटहब पे डाल देते हैं। सो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट एक काम करता हूँ, अपनी रेपोजिटरीज में जाता हूँ। I can just do simply over here ना, रेपोजिटरी में जाता हूँ, न्यू रेपोजिटरी, मैं क्रिएट कर देता हूँ रेपोजिटरी विद नेम एज MLSA, क्या नाम दूँ इसको मैं, नोड JS 2022, ठीक है। पब्लिक होगी, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं है, रीडमी अभी के लिए कोई नहीं है, ऐड इन फाइल कुछ नहीं है, लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। क्रिएट रेपोजिटरी, ठीक है, मैंने रेपोजिटरी क्रिएट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि एक बार गिट स्टेटस में क्या आ रहा है, ये फाइल्स आ रही है ना, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली देखो यहाँ पे कुछ फाइल्स शो हो रही हैं कि हाँ ये शो अलग से हो रही है कि हाँ इसमें तो सिर्फ थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये फाइल्स टोटली नहीं है, मतलब ये फाइल टोटली नहीं हुआ है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो है ना, ये जो फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स वाला, ये बहुत ही हैवी फोल्डर होता है और हम इसको बेसिकली गिटहब पे पुश नहीं करते। तो अगर मैं चाह रहा हूँ ना, हाँ एग्जैक्टली, तो बेसिकली मैं क्या चाह रहा हूँ कि गिटहब जो है ना, गिट जो है वो इस फोल्डर को इग्नोर कर दे। तो एक फाइल बनती है हमारी डॉट गिट इग्नोर करके, एंड आई कैन जस्ट सिंपली स्टेट कि हाँ नोड मॉड्यूल्स नाम का एक फोल्डर है, वो नहीं आना चाहिए, और वो हट गया। अगर मैं अब लिखता हूँ यहाँ पे कि गिट स्टेटस, यहाँ पे नोड मॉड्यूल शो नहीं हो रहा, यहाँ शो हो रहा था ऊपर, अब शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो वही जो कमांड गिट ऐड डॉट सारे के सारे ऐड किए, गिट स्टेटस, ठीक है, गिट कमिट -m, pushing the latest code base, pushing the फीचर डाल देते हैं, created express server, git push origin master है ना, मास्टर भी है नहीं, हाँ ठीक है। अब मुझे इसको बताना पड़ेगा किसी तरह कि हाँ यार इसको इस रेपोजिटरी में पुश करना है, इसको कोई सपना तो आएगा नहीं कि यार अब इसको इसमें डालना है। सो व्हाट वी जस्ट हैव टू डू, हमको सिर्फ इसका ना एक लिंक सेट करना है। क्या ना ना, क्लोन करने की भी नीड नहीं है, वी जस्ट हैव टू सेट कि हाँ गेट सेट git remote set origin, and here I will just give the URL for this. I guess SSH में करूँगा ना मैं, SSH में ये था ना कमांड git remote set add origin, हाँ add origin, ठीक है। और git remote -v में यहाँ मेरा शो हो जाएगा कि हाँ मैंने इसको इससे लिंक कर दिया। ओरिजिन का मतलब ये है, आई जस्ट मैंने बस अभी एक एलायस सेट किया है ओरिजिन के, हाँ ये लिंक का मतलब ओरिजिन है। अब मुझे बस क्या करना है, गेट पुश ओरिजिन मास्टर, पुश हो गया। अब मैं रिफ्रेश करूंगा इसको, सारी फाइल्स आ गई मेरी। एज आई टोल्ड यू, रीडमी के अंदर वो डेटा आता है जो हमारा शो होता है यहाँ पे, बात समझ रहे हो मेरी, ठीक है। जो हमारे प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, मैंने एक बहुत ही बेसिक से लिखी है, बहुत ही बेसिक, मतलब सिर्फ हेडर ही है, इतनी अच्छी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर कोई बनाओगे सैंपल तो उसमें और अच्छे से करना, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा कोड हो गया, राइट। तो हमने नोड.js वाला कोड लिख लिया है। अगेन थोड़ा सा आगे चलते हैं, सेशन थोड़ा रैप अप करते हैं फटाफट से। लास्ट टॉपिक है आज का, कंटेनराइजेशन और डॉकर। तो यार कंटेनराइजेशन क्या होता है? Just give me a minute. किसी को डाउट है तो पूछ लो, लेट्स जस्ट टेक ब्रेक फॉर 1 or 2 minutes। किसी को अब तक कोई भी समझ ना आया हो अब तो कुछ भी तो पूछ सकते हो। किसी को पूछना कुछ अब तक कुछ समझ ना आया या कुछ भी? एनीवन? हेलो भाई, गिट अपने आप से कोई फाइल्स तो नहीं बनाता है ना? गिट अपने आप से कोई फाइल कभी नहीं बनाएगा यार। जैसे रीड, हाँ जैसे read.md था वो हमें ही बनाना पड़ेगा, मतलब खुद से। यार जब मैं रेपोजिटरी बना रहा था ना, एक बार जरा स्क्रीन पे देखना मेरी, अगर मैं कोई रेपोजिटरी बनाता हूँ तो यहाँ मुझसे पूछेगा जरूर कि आपको हमारी ये कस्टम फाइल चाहिए बनी बनाई रीडमी। मैंने इसको टिक नहीं किया था तो उसने मेरे को एक एम्प्टी दिया एकदम, मतलब सब कुछ दिया, जो था सब खाली था, समझ रहे? तो लेकिन वो खुद से बना सकता है, अगर आप टिक कर दोगे दे विल जस्ट गिव यू बेसिक टेम्पलेट रीडमी की। ऐसा सीन। बाकी यार ये जो कमांड किसी को लग रहा हो यार कि कमांड बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, किसी को समझ ना आ रही हो, तो यार ये विद प्रैक्टिस आती हैं। आपको कमांड्स अगर मैं जो साथ साथ बता रहा हूँ साथ साथ नोट डाउन करते रहो, उससे भी हेल्प हो जाएगी। बाकी डाउट्स है तो पूछ सकते हो मुझसे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो हम लोगों ने गिटहब पे डाल दिया अपना कोड बेस जो है। अब थोड़ा देखते हैं कि कंटेनर्स क्या होते हैं, कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट क्या है। हाँ, तो बेसिकली यार सीन ये है कि यार मैंने एक अपना प्रोजेक्ट बनाया। लेट्स से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत सारा कोड बेस है, फ्रंट एंड है इसमें, ठीक है। लेट्स सपोज कि बैक एंड है इसमें, ठीक है ना, बैक एंड है और ये नोड.जेएस पे ही है, बैक एंड नोड.जेएस पे ही है। तो मैं चाह रहा हूँ यार कि इसको ए यूज करे, ए इस पे कोड करे, बी भी इस पे कोड करे, सी भी इस पे कोड करे। पर मैं बहुत अनलकी हूँ। अनलकी क्यों? ये काम करेगा विंडोज पे, ये मैक पे, और ये काम करेगा हमारा उबुंटू पे। तो यार ये स्कैम हो जाएगा बेसिकली, अगर मैं ऊपर से बताऊं। होगा क्या यार, ये जो पूरा कोड बेस है ना, मैंने जब बनाया था, मैं लेट्स से एकदम वो हूँ, हेड सुपरवाइजर हूँ मैंने जब ये बनाया था ना, तो मैंने बनाया था इसको लिनक्स पे। तो हो सकता है कुछ चीजें विंडोज पे अभी सपोर्ट ना कर रही हूँ, जो कि इसके में एरर शो करें और इसके में प्रोजेक्ट स्टार्ट ही ना हो। इट इज अ पॉसिबिलिटी, जो कि होता भी है। हो सकता है ये मैक वाला बंदा इसके में भी प्रोजेक्ट स्टार्ट ना हो, सिर्फ लिनक्स वाले में स्टार्ट हो। तो मैक में हो जाएगा, बट स्टिल अज्यूमिंग कि ना हो, ठीक है। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कि हम एक प्रोजेक्ट ऐसा बना दें जिसमें एक पहली लेयर हो ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि हम डिफाइन कर दें कि हाँ यार ये हमारा है उबुंटू, बेस हमारा उबुंटू का है, ठीक है। उबुंटू के ऊपर जो है ना, उबुंटू के ऊपर लेट्स से हमारा एक और चीज बनी है, जो कि हमारा जो है नोड.जेएस है, ठीक है। इसके ऊपर हमारा जो है नोड अलग से आ गया। समझ रहे बात मेरी क्या बोल रहा हूँ मैं? इसके ऊपर उबुंटू के ऊपर, उस नोड.जेएस के ऊपर हमारा जो है कोड बेस है। तो अलग अलग लेयर डिफाइन हो गई। पहला हमारा उबुंटू की लेयर थी, दूसरी में नोड.जेएस की लेयर है, तीसरी हमारी कोड की लेयर है। अब मैं चाहता हूँ, हाँ, अब जैसे कि मैंने अभी एक्सप्रेस इंस्टॉल किया, तो इसके अंदर एक्सप्रेस भी इंस्टॉल्ड है। लेट्स सपोज इसके अंदर एक्सप्रेस भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं ये बस बना बनाया जो खाना है ना, ये मैं एक डेवलपर को दे दूं। एक को मैंने बस ये खाना दे दिया, उसको बस ये खाने को खाना है, बात खत्म। अपने में उसको कुछ नहीं करना कि हाँ मैं विंडोज वाला हूँ, उसको बस ये एग्जैक्टली सेम टू सेम अपने में चलाना है। उसको उबुंटू भी मैं इसमें दे रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली उबुंटू, बट हाँ सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। मतलब मेरा काम कितना ईजी हो जाएगा, समझ रहे बात मेरी? हेलो, किसी को इसमें कोई दिक्कत इस कंसेप्ट में कि हाँ मैं अलग अलग लेयर्स बना दूं, लेयर्स बना के मैं उसको दे दूं, ऐसा? जैसे आप अभी गिट चला रहे थे वही। गिट में यार लेयर्स कहाँ बन रही हैं? नहीं सॉरी, बता नहीं, कोई नहीं बता, क्या समझ नहीं आया? नहीं मुझे लगा आप अभी भी ऐसा कुछ यूज कर रहे हो एजर में या फिर ना क्लाउड देख, टूल कंप्यूटिंग। तो है, देख एक टूल तो है जिसको हम यूज कर रहे होंगे लेयर्स बनाने के लिए, पर वो गिट नहीं है। गिट तो सिर्फ ये है ना कि यहाँ वर्जन आगे पीछे करने के लिए 1.1 से 1.2 पीछे करना हो, वापस चले गए, ठीक है ना। गिट तो सिर्फ इसलिए है। लेकिन अगर मेरे को लेयर्स बनानी हो तो काम काफी इजी हो जाएगा। पहली बात तो ये, लेयर्स बन जाएंगे, काम इजी हो जाएगा। किसी को ये दिक्कत आई समझने में, क्या है इससे काम इजी हो रहा है, किसी को लग रहा हो कि यार इससे काम मुश्किल हो रहा है हमारे लेयर्स बनाने से, कोई इसका कोई कॉन्स किसी को लग रहे हो इसके लेयर्स के, तो बताओ यार, अनम्यूट करो और बताओ, लग रहा हो किसी को गलत है या सही है, किसी को अपने ओपिनियन शेयर करने हो? एनीवन? प्रोस क्या हो सकते हैं इसके? प्रोस क्या हो सकते हैं इसके या कॉन्स? प्रोस यार प्रोस तो ये होगा ना यार, देख तेरे को बना बनाया कोड मिल रहा है, मैंने कोड किया तो बना बनाया मिल रहा है, तेरे को देखने की नीड नहीं है कि यार तू विंडोज पे है या तू लिनक्स पे है। बना बनाया कोड मिल रहा है, इसको अपने पे चला, बात खत्म। मतलब सिस्टम जैसा ऑनलाइन, हाँ, क्लाउड में सिस्टम जैसा बन गया मतलब। क्लाउड में सिस्टम नहीं है। अगर मैं एक और तेरे को कहूँ कि यार तो क्लाउड की भी नीड नहीं है, ये काम तेरे लोकल में हो जाएगा बहुत प्यार से, तो और बढ़िया बात है। तो प्रोस तो है इसके, कॉन्स कोई है तो बताओ जो लग रहा हो कि कौन सा इसके? स्पेस ज्यादा लेगा बहुत। स्पेस तो लेगा, पर अगर आपको स्पेस के कॉस्ट पे अगर आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं सारे, कि आप किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकते हो, तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसके फायदे ही हैं। बेसिकली टूल का नाम है डॉकर, ठीक है। डॉकर जो टूल का नाम है वो, ठीक है। डॉकर बेसिकली क्या है, हमें डॉकर की हेल्प से ना कंटेनर्स बना देते हैं, नॉट कंटेनर्स, हमें इमेज बना देते हैं, इमेज,
कि मैंने अपने पूरे Node.js एप्लीकेशन की इमेज बना दी। पहली लेयर उबुंटू थी, दूसरी लेयर Node.js थी, तीसरी लेयर मेरा कोड था जो भी था, उसकी लेयर बना के एक इमेज बन गई। अब यूजर को या फिर एक डेवलपर को सिर्फ उस इमेज को अपने लोकल में रन करना है और उसका कोड चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, ऐसा सीन। एक बार मैं देख लेता हूँ मेरा कोड चल रहा है ना। अगर मैं लिखूं node-index.js, जैसे मेरा कोड स्टार्ट हो गया, मेरा कोड चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं फटाफट से ना, एक बार ना फटाफट से अपने कोड की ना मैं डॉकर की हेल्प से इमेज बना लेता हूँ ताकि वो थोड़ा और पोर्टेबल बन जाए। बस ये कंसेप्ट है कंटेनर्स का। कंटेनर बेसिकली स्टार्टिंग में यार एक चीज, एक इमेज होती है, जब उसको हम रन करते हैं तो फिर वो कंटेनर बन जाता है। इमेज एक स्टैटिक फाइल हम कह सकते हैं, जो रन हो रहा है वो कंटेनर है जो चल रहा हो लिटरली हमारे सिस्टम पे। इतना सा कंसेप्ट है। कंटेनर समझ में आ गए हमें क्या होते हैं। वैसे बहुत आपको ऊपर से बताया, बहुत ब्रीफ ओवरव्यू दिया है, बट काफी डीप कंसेप्ट है। डॉकर बता दिया क्या होता है मैंने आपको। बेसिकली जो चीज़ें ना आपकी मैनेज इजीली हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को डिप्लॉय भी कर रहे हो तो बाद में डिप्लॉयमेंट के टाइम पे अगर आप डिप्लॉय उनको लिनक्स एनवायरनमेंट में कर रहे हो तो आपको वहां भी देखने की नीड नहीं कि यार आप डिप्लॉय विंडोज के किसी सर्वर पे कर रहे हो या लिनक्स पे कर रहे हो। आपको पता है डॉकर की इमेज है, डिप्लॉय करनी है, सिंपल काम खत्म, ऐसा सीन। ठीक है, तो डॉकर भी हो जाएगा हमारा। चलो फिर यार डॉकर का फटाफट ना कोड लिख देते हैं कि उसकी इमेज बना देते हैं फटाफट से। भाई एक तो चीज कुछ नहीं है। हाँ बिल्कुल। डॉकर वीएम जैसे ही होता है क्या? भाई ये ऐसा क्वेश्चन है जिसपे लिटरली जब मैं डॉकर पढ़ रहा था ना मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ था एटलीस्ट 1 महीने तक। अच्छा वीएम जैसा ही है, ठीक है। अच्छा वीएम जैसा, देख यार वीएम तो ना बेसिकली हमारा पूरा का पूरा एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम देता है जिससे हम कोड कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, है ना। तू यार वीएम पे गेम खेल सकता है, डॉकर पे तो गेम कैसे खेलेगा। अच्छा, मतलब डॉकर एक मान लो सिर्फ एक स्पेसिफिक काम के लिए बनाते हैं हम। यार हाँ, बेसिकली डॉकर में तेरे को एब्स्ट्रैक्शन मिल रही है, लेकिन वीएम तो ज्यादा ही एब्स्ट्रैक्शन होगी ना। बेसिकली डॉकर में ना एक चीज होती है तेरी जो कर्नल नाम की एक ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कर्नल होता है, ठीक है। एक बहुत ही इंटरनल लेयर होती है, अगर हम ऊपर से देखें वो नहीं बदल रहा होता, वो सेम रहता है। जैसे कि अगर विंडोज का यूज कर रहा है ना तो विंडोज के अंदर जो तेरा टॉप मोस्ट लेयर है कर्नल वही सेम होगी, इसी विंडोज चल रहा होगा, इसी विंडोज से लिंक होकर तेरा डॉकर चल रहा होगा। लेकिन जो तेरा कंसेप्ट है क्या उसका वीएम का, वो फिर आता है तेरा जो कंसेप्ट फिर आते हैं तेरे वर्चुअलाइजेशन वगैरह के, वो फिर कर्नल लेवल पे पूरी पूरी नई वीएम बनती है जो कि नया एक ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट कर रही होती है। ये मतलब वास्ट है थोड़ा। हाँ बिल्कुल, पढ़ना हो तो भाई पढ़ लियो। वर्चुअलाइजेशन ऑल्दो कल रोहन बताएगा इन चीजों के बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में, तो मैं बस ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ। वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आता है, इससे गो थ्रू वगैरह कर लियो, ठीक है। डन है जी, सही है यार। तो हमने देख लिया फटाफट से ना इसकी ना इस कोड की एक इमेज बना देते हैं। तो इमेज बनाने के लिए क्या होता है, एक फाइल बनती है हमारी डॉकर फाइल, उसका कोई एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है। डॉकर फाइल बनती है। हाँ यार, तो उस डॉकर फाइल में क्या होता है मैं इसको पहले बताऊंगा। आई गेस देख मैं देखो क्या हुआ, मैंने बस लिखा है यहाँ पे Node.js डॉकर और मेरे को दिख जाएगा। कोई अगर कॉर्पोरेट बंदा PHP में कर रहा हो तो उसको PHP का मिल जाएगा, जिसका भी कोड हो मिल जाएगा उसको। एक एप्लीकेशन को डॉकराइज करना इज नॉट दैट मच बिग ऑफ अ डील लिटरली। मेरे को ये कोड मिला जैसे कि ये ठीक है, बेसिक एग्जांपल हो गया। मैंने डॉकर फाइल बनाई फ्रॉम नोड 16 क्योंकि ये एनवायरनमेंट है। उबुंटू भी नहीं चाहिए इसको, नोड को ही बेस लेके चल रहा है, ये बेस लेयर होगी जो जिसमें काम कर रहे होंगे। मैंने इसको कहा एक वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट कर अपने में, उसने वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करी, ठीक है। अब सबसे उसके बाद हमारी क्या होगा, हमारी जो नोड में ना सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है हमारी package.json, तो उसको ताकि ये मिल जाए package.json मिल जाए और package log.json मिल जाए, इसलिए हमने ये लिख दिया। स्टार मींस पैकेज के आगे जो कोई भी फाइल है तो मिल जाए जो पैकेज से स्टार्ट हो रही हो। तो ये दोनों है, उसको ये दोनों मिल गई। इसके बाद हमने कहा npm इंस्टॉल, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए। रन मतलब इमेज बनते ही इमेज के अंदर इंस्टॉल करते, बाद में ना करें, ठीक है। वैसे ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ अभी। कॉपी सारी कोड की फाइल्स उस इमेज में डालने के लिए, ठीक है। एक्सपोज 8080 जो हमारा पोर्ट है उसको एक्सपोज करने के लिए। फॉर एग्जांपल आई बीन यूजिंग, आई गेस आई वाज यूजिंग पोर्ट 8000, तो मैं इसको 8000 कर दूंगा ताकि यही एक्सपोज हो। CMD में ये कमांड चलनी चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि ये नोड पे index.js की कमांड एग्जीक्यूट हो जाए। अब और लोग पूछेंगे यार यहाँ पे लिखा है रन, यहाँ पे लिखा है CMD, इन दोनों में फर्क क्या है। रन बेसिकली यार तब चलता है जब हमारी इमेज बन रही होती है,
CMD चलता है हमारी इमेज बनने के बाद, जब हमारा कंटेनर चल रहा होता है उस टाइम। तो ऐसा सीन है, ठीक है। तो डॉकर फाइल हमारी क्रिएट हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमको कुछ नहीं करना, कमांड लाइन में गए हम। अगेन आपको डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके लिए डॉकर इंस्टॉल करने के कुछ स्टेप्स हैं। लिनक्स में तो बहुत ईजी हो जाएगा, लेकिन विंडोज में डालना है। तो विंडोज के अंदर एक चीज आती है डॉकर डेस्कटॉप नाम की, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। पूरी इंस्टॉलेशन की गाइड यहाँ पे है, मैं लिंक दे देता हूँ उसके चैट में। मैं चैट में लिंक दे देता हूँ इसका, ठीक है। ऐसे एक लिंक दे दिया, ठीक है। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ, मेरी यहाँ एक इमेज बन चुकी है एलएस में, मैं देख पा रहा है कि मेरी डॉकर फाइल है, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा डॉकर बिल्ड डॉट, इससे मेरी इमेज क्रिएट हो जाएगी कंफर्टेबली। ये मेरी इमेज क्रिएट हो रही है, ठीक है ना, ठीक है। तो मेरी इमेज क्रिएट हो चुकी है। डॉकर इमेजेस एक कमांड है, इसे दिख जाएगी कि कौन कौन सी इमेजेस बनी हुई हैं। अभी मैंने इमेज ये बनाई है, तो मैं ये यूज कर लेता हूँ इसको, इमेज को। ये इसकी इमेज की आईडी है। आई जस्ट हैव टू रन डॉकर रन और इमेज की आईडी, उससे मेरी इमेज चल रही है। तो मेरे को लिखा आ रहा था ना कि मेरे को लॉग्स आ रहे थे मेरे लोकल में, वही लॉग्स मेरे अब इस पे आ रहे हैं, ठीक है। अब तक किसी को डाउट डॉकर समझ ना आया हो? अब तक जितना बताया मैंने बेसिक जो दिक्कत है पूछो। किसी को भी डाउट्स हो अब तक पूछ लो, फील टू आस्क योर क्वेश्चंस। अब तक किसी को कुछ भी समझ ना आया हो पूछ सकते हो। डॉकर फाइल में मतलब एक सेट ऑफ कमांड्स जैसे होते हैं। हाँ यार, एक इंस्ट्रक्शन जो आप उसको दे रहे हो ताकि वो उससे उनको फॉलो करके अपनी इमेज बना ले, ऐसा सही है। और किसी को कोई दिक्कत? एक चीज पूछती, अभी तो हम हाँ, आपसे हाँ। देख रहे हैं, वैसे हाँ, कोई बुक भी है जहाँ से हम यूज कर सकते हैं? कौन सी बुक? समझा नहीं, कौन सी बुक की बात कर रहे हो? मतलब ऐसे हम पूछूं कोई बुक जहाँ से हम सीख सकें थोड़ा। और अभी जैसे हम अभी तो ऑनलाइन हम देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, देखो यार, आपको देख रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपको सीखना क्या है। Node.js वाला जो मेरा पार्ट था वो सीखना है तो उसके अलग रेफरेंसेस हैं। अगर आपको डॉकर पढ़ना है तो उसके अलग रेफरेंसेस हैं, ऐसा तो ठीक कोई है ना। डॉकर के तो शॉर्ट मतलब में होगा, हाँ, कोई शॉर्ट में होगा ऐसी बुक जो सबको इंक्लूड कर जाए? यार ऐसी की बुक नहीं है, समराइज पर आपको टॉपिक्स उठाने पड़ेंगे खुद से डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी, ऐसा करके चलना पड़ेगा। ठीक है। वैसे आप डाल दोगे वो भी, व्हाट्सएप पे डाल दोगे आप? व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना? हाँ हूँ। हाँ, मैं डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है, भेज दूंगा हर रिसोर्स जो भी है, नो इश्यूज। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो डॉकर हमारी इमेज बन चुकी है अभी के लिए। मैं देख लेता हूँ अगले वीएम बना के कि डॉकर पीएस कोई कंटेनर तो चल नहीं रहा हमारा, चल रहा है मतलब। तो मैं इसको अभी के लिए स्टॉप कर देता हूँ इसकी आईडी डाल के, ठीक है यार। मैंने कंटेनर स्टॉप कर दिया है, स्टॉप हो रहा होगा, ठीक है। एक बार ना इमेज को पुश कर देते हैं डॉकर अप पे, ठीक है। आज की आखिरी चीज है बस कि मैं इमेज पुश कर रहा हूँ डॉकर अप पे उसकी बना के। तो मैंने इसकी एक रेपोजिटरी बना लेते हैं, जिस तरह गिटहब है उस तरह डॉकर अप है डॉकर की इमेजेस के लिए। मैंने इसको पब्लिक रखा, मैंने इसका नाम दे दिया, लेट्स सपोज कि मैंने इसका नाम दे देता हूँ MLSA सेशन 2022, ठीक है। MLSA नोड, ठीक है, लोअर केस नोड JS MLSA, ठीक है। आई गेस डन है। कुछ कमांड जो डालनी पड़ेंगी हमें, ओके। मैंने बनाया, इसको पब्लिक कर दी मैंने, पब्लिक हो चुकी है। आई गेस मेरे को बिल्ड करना था, हाँ। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको डॉकर बिल्ड कर लेता हूँ, डॉट करके -t करके इस नाम से ना, ताकि वो काम और इजीली हो जाए। हाँ, तो डॉकर पुश डॉकर इमेजेस डॉकर पुश आई गेस A6 जो भी है, डॉकर पुश, ये जो पूरा नाम है इसका वो मैं कॉपी कर लेता हूँ,
लेटेस्ट डाल देते हैं आगे और ये पुश हो रही है। तो बेसिकली मैंने अभी क्या किया, मैंने अभी इसकी एक इमेज बनाई, ये यहाँ पुश हो जाएगी। अब कल जब रोहन इसको डिप्लॉय करेगा तो सिंपली डिप्लॉय करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको। यू जस्ट हैव टू यूज डॉकर इमेज और इसको बस उठा के इसको डिप्लॉय करना है। सो उसको डिप्लॉयमेंट पार्ट ईजी करने के लिए मैंने अपने एंड से इसको डॉकर की इमेज बना के पुश कर दिया और यहाँ पे शो हो गया कि मैंने लेटेस्ट नाम से की है ऐसे ऐसे। ठीक है, जिसको अभी भी लग रहा हो कि आज का सेशन बहुत हैवी हो गया, फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस अगेन। आई एम सेइंग जस्ट सेम थिंग अगेन एंड अगेन। अपने क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो बाद में भी, ठीक है। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल हमारा आई गेस जो सेशन होगा उसमें we guys will be covering all this part जिसको रोहन कवर करेगा। कल का सेशन भी अटेंड कर लेना आप लोग, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब जैसे कि मैंने आपको कहा था ना कि मैंने गिटहब पे बना दिया, तो अब सारी नॉलेज को यूज करके जितनी भी आपको मिली है, जितना भी आपने सीखा है आज, उसको यूज करके मेक श्योर कि आप जो मैंने प्रोजेक्ट रेपोजिटरी बनाई है उसमें कंट्रीब्यूट भी करें। तो मैं लिंक डाल देता हूँ उसका चैट में, ठीक है। इसको आप अपनी ब्रांच बना के इस रिपोजिटरी के अंदर जो भी आपको करना है फोक कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए गिटहब को, जो चीज़ समझ ना आए पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डाल रहा हूँ इसको भी चैट में, इसको कोई भी दिक्कत आए तो पूछ सकता है मुझसे बाद में भी। इसमें ट्राई करें कि आप कोई अपनी तरफ से कोई इशू बनाए, कोई PR बनाए, मैं आपको उसी में हेल्प कर दूंगा जितनी मेरे से हो पाएगी। तो ऐसा सीन है, ठीक है। अब तक किसी को भी डाउट कुछ पूछना हो एक बार चैट को पब्लिक कर दूं। ये चैट विजिबल नहीं है, चैट विजिबल नहीं है हमें। आप व्हाट्सएप पे हो? हाँ व्हाट्सएप या तो मैं लिंक्स वहीं शेयर कर देता हूँ सारे के सारे। हाँ चैट वहाँ विजिबल डाल नहीं दो है। आप वहीं। अगर तुम्हारे कुछ डाउट्स भी हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख दो, हम वहीं से एंटरटेन कर लेंगे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप खोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो ठीक है यार, किसी को कुछ पूछना तो पूछो, वरना फिर मैं जो सेशन एंड कर देता हूँ। इतना ही था मेरी साइड से, किसी को कुछ भी पूछना हो पूछ लो। घर है वो भैया का सेशन भी है अभी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर मैं एंड करता हूँ, ठीक है। भाई ठीक है यार, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप खोल दिया है, यू कैन आउट आस्क थैंक यू डाउट्स हियर। ओके ओके, नो इश्यूज। भाई डॉकर हब भी VSC जैसा ही है ना? यार डॉकर हब गिटहब जैसा है बेसिकली यार। गिटहब पे आप कोड डालते हो, डॉकर हब पे आप अपनी इमेजेस डालते हो। ओके ओके। इमेजेस से मेरा मतलब, इमेज से मेरा मतलब है कोड की इमेजेस जो मैंने डॉकर से बनाई है। फोटोज की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। अंडरस्टूड है ना? हाँ वो तो समझ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, परफेक्ट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई दिक्कत हो ग्रुप में पूछ लो, जैसा माधव ने कहा। तो ठीक है यार, एंड कर रहा हूँ मैं सेशन। ओके ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू भाई। अरे वेट, रिकॉर्डिंग एंड कर देते हैं। You all can leave.